कहीं तो होगा ही। બધા આવી ગયા ને? वो गायब तो नहीं આજુબાજુ જોઈ લો ને, બધા કોઈ ઊંઘતું નથી ને? है इसी पे कहीं। चुप एक मिनट। नींद उड़ गई? बढ़िया सेशन नंबर 2 अच्छा वो डिलीट ही हो गया क्या? પ્રશ્નથી શરૂઆત કરીએ. કોઈ છે સેશન નંબર 2 માં કોઈ પ્રશ્ન થયો હોય? हाँ ठीक है वही बात है, फिर से बना કેટલા લોકોને એવું લાગે યાર બહુ હેવી છે, डिलीट तो नहीं हो। અને કેટલા લોકોને એવું લાગે અચ્છા તને લાગે, હા કહી શકાય, હા, અને કેટલા લોકોને એવું લાગે કે યાર બરાબર જઈ રહ્યું છે, हाँ, वो चला ही गया ધીરે तो कहीं और ધીરે. चला ગ્રેટ, गया। ठीक कोई बात બઢિયા. તો નિષ્કર્ષ શું કાઢ્યો છે? કોઈ કંઈ શેર કરવા માગે છે? હા મીરભાઈ. નિષ્કર્ષમાં ભૈયાજી વાત કરતાં કરતાં પછી વાતને આપણે આગળ ખેંચી નહીં, પણ નિષ્કર્ષમાં મને એવું લાગ્યું કે પેલું નહીં, પાણી છે જ, પ્યાસ લાગે એટલે પાણી જોવાય છે, પાણી તો છે જ, પ્યાસ લાગે એટલે પાણી જોવાય છે. એવી રીતના તમામ સોલ્યુશન છે જ, આપણી શોધખોળ એ દિશા તરફ જાય તો જોવાય. આ થોડુંક મેં મારા એક્ઝામ્પલ તરીકે એવી રીતના લીધું કે અમારી ઓફિસમાં કંઈ પણ નાની મોટી ક્વેરી આવે ને એટલે પછી એના સોલ્યુશન પર અમે લોકો મથામણ કરીએ એટલે પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન મળે, પણ ટેકનિકલી સોલ્યુશન તો હતું જ, આપણે એ વિષય પર કામ જ નહોતું કર્યું. આવું આ રીતના હું આખા વિષયને જોયું મેં. શું લાગે છે? એ જે કહે છે એવું લાગે છે? ભૈયા એવું નથી કીધું એકચ્યુઅલી. બે વસ્તુઓ એમણે સમજાવી, ફરીવાર આપણે સમજીએ. અને એક અહીંયા જે મૂક્યું હતું એ હતું અસ્તિત્વ, અને અહીંયા वो चित्र डाल सकते हैं पुराना पेज? अरे वो तो पूरा डिलीट ही हो गया। ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है? हम लोग कुछ डिलीट कार, ये कौन डिलीट कार है? कोई मानव का इंटरवेंशन. यस, सो रियलिटी थी, उसमें इंटरवेंशन आया, और वो क्या है? संसार. तो मानव सर्जित જે છે એ શું છે? સંસાર, જે જે આપણે ઊભું કર્યું છે. હવે આપણે જે સમજણથી એને ઊભું કર્યું છે એ સમજણ છે કે નહીં એ સમજવાનું છે. એટલે આપણે અત્યાર સુધીમાં આપણા જીવનમાં જે પણ કંઈ પ્રશ્નો છે એમાં આપણે એમ વિચારે કે આ પ્રશ્ન છે, અરે આનું સોલ્યુશન તો છે જ, મને દેખાતું નહોતું, એવી રીતે આપણે એને જોઈએ. એવું નથી. એમણે અસ્તિત્વના પ્રગટનનો આખો એક ક્રમ, અસ્તિત્વમાં પ્રગટન છે કે નહીં એ પ્રશ્ન, બરાબર, પછી અસ્તિત્વ ખરેખર શું છે એ પ્રશ્ન, પછી પદાર્થ અવસ્થા, પ્રાણ અવસ્થા, જીવ અવસ્થા અને જ્ઞાન અવસ્થા વિશેની વાત. તો એમાં પદાર્થ અવસ્થામાં શ્રમ થવાથી પ્રાણ અવસ્થા આવી, અને એમાં પદાર્થ અવસ્થા એ પ્રાણ અવસ્થા માટે એસેટ થઈ, એમ બરાબર આવી વાત થઈ. તો એ અસ્તિત્વ છે, અને અહીંયા શું છે? સંસાર. સંસાર ક્યારે આવે છે? છેવટે માણસથી એન્ટર થઈ જાય આખી વાત, બરાબર. એમાં આપણી અણસમજણથી જે પણ કંઈ થયું છે, જેટલું પણ આપણે ઊભું કર્યું છે, એમાં આપણી ગેરસમજણને કારણે અથવા અણસમજણને કારણે છે. હા, તો હવે જે ઓલરેડી છે એને જોવાનું છે, જે ચિતરાઈ ગયું છે એમાં શોધ્યા કરશું તો સમસ્યાઓ જ દેખાશે, એવી વાત છે. જે ચિતરાઈ ગયું છે, અસ્તિત્વમાં સમાધાન છે, અસ્તિત્વને સમજવાથી સમાધાન પૂર્ણ જીવી શકાય એમ છે, સમજણપૂર્વક જીવી શકાય એમ છે. આ વાત છે. હવે અસ્તિત્વ શું છે એને સમજવું પડે. એમણે પ્રશ્ન શું પૂછ્યો? ભાઈ કેટલા લોકોને એ પ્રશ્ન પહોંચ્યો હતો કે પહેલાં પાણી કે તરસ, પહેલાં ભૂખ કે ભોજન? એટલે પહેલાં આખું ક્રમ જ્યારે જોઈએ તો પહેલાં માટી આવી ગઈ. કોના માટે આવી? એના પછીની અવસ્થા માટે માટી, પાણી અને હવા, આ ત્રણેયનું એક પ્રકારનું સંતુલન ઊભું થયું. એ સંતુલિત અવસ્થામાં પછી નવી અવસ્થાનો ઉદ્ભવ છે, જે છે પ્રાણ અવસ્થા, બરાબર. તો એમાં શું થયું કે ભાઈ હાઇડ્રોજનનો એક પરમાણુ, બીજો પરમાણુ અને ઓક્સિજનનો એક પરમાણુ, એ કોઈ નિશ્ચિત તાપ દાબની અવસ્થા છે. કોઈક એવી વિચારો, પહેલું પાણીનું કેવી રીતે બન્યું હશે? એ સંયોજન કેવી રીતે થયું? સૌથી પહેલી વાર ખાલી કલ્પના કરો. આ પૃથ્વી, એમણે કીધું પૃથ્વી કઈ અવસ્થામાંથી, એવું ધારી લો કે પૃથ્વી એકદમ ગરમ ગરમ વાયુનો ગોળો હતી, સૂર્ય જેવું અત્યારે છે એવું. પછી ધીરે ધીરે ક્રમશઃ એ શું થયું? એ
ઠંડુ થયું. ઠંડુ થતાં એ કયા સ્વરૂપમાં આવ્યું? જુદા જુદા એની અંદર જે પરિવર્તન આવ્યું. પરિવર્તનમાં એક સમય એવો છે કે જ્યારે હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન એ બંનેનું સંયોજન થતાં પહેલાં ઘન અવસ્થા આવી પૃથ્વીની. ઘન અવસ્થામાં શું થયું? માટી બની. માટીની અંદર એમણે કીધું ખાડા થયા. બરાબર? એક પ્રકારની ઉથલપૂથલ, સાહેબ જે વાત કરતા હતા પરિવર્તન વિશે એમણે વાત કરી કે સંસારમાં તો ઉથલપૂથલ છે એવું એમણે કીધું. બરાબર? તો આ થયું પહેલાં પદાર્થ અવસ્થામાં. આ બધી જ ઘટનાઓ બદલાઈ અને એક સ્થિતિ એવી, પહેલો પાણીનો કેવી રીતે અણુ બન્યો હશે? કઈ સ્થિતિમાં બન્યો હશે? એક એવું વાતાવરણ ઊભું થયું. બરાબર? મ્યુટેશન નહીં, વ્યવસ્થાની મ્યુટેશન નથી. બરાબર છે? તો હવે આપણે એને મ્યુટેશન તરીકે જોઈશું કે વ્યવસ્થા તરીકે જોઈશું? એ તો વ્યવસ્થા છે. જોવાની દૃષ્ટિ આ છે કે વ્યવસ્થા છે. હવે મૂળ વાત, તો પહેલી વાર હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન આ બંનેનો મેળાપ થયો અને એક એવી સ્થિતિમાં મેળાપ થયો કે જ્યાં બધું જ હતું. કેવું હતું? ઓપ્ટિમમ. પાણીના પ્રગટન માટે બધું ઓપ્ટિમમ હતું. ત્યારે પાણી પ્રગટ થયું. પાણીના આવ્યા પછી એ પૃથ્વીની સ્થિતિ એવી હતી કે જેની અંદર એ પાણી સમાઈ શકે. રાઈટ? એટલે જે ખાડાની વાકી વાત આવી એના થવાથી શું થયું? એની અંદર ઓલરેડી એસિડ અને ક્ષાર, એટલે સોલ્ટ અને ક્ષારની વાત હતી. તો એ બની શકે એવી સ્થિતિ ઉત્પન્ન થઈ. હવે સોલ્ટ ક્ષાર જે હતા એની સાથે ભેગા થવાથી સમય જતાં શું થયું? એક કોષીય, પછી બહુકોષીય રચનાઓ, અને એમાંથી પ્રાણ અવસ્થાનો નવી અવસ્થા આવવા માટેની એક સ્થિતિ તૈયાર થઈ. તો પદાર્થ અવસ્થા સંતુલનમાં છે ત્યારે પ્રાણ અવસ્થા પ્રગટ થાય કે અસંતુલનમાં હોય ત્યારે પ્રાણ અવસ્થા પ્રગટ થાય? બરાબર? તો પદાર્થ અવસ્થામાં શ્રમ લાગ્યો ત્યારે પ્રાણ અવસ્થા પ્રગટ થઈ. પછી પ્રાણ અવસ્થા જે છે એની અંદર ક્રમિક પરિવર્તનો આવ્યા અને પછી એક સમય એવો આવે છે જ્યારે નવી અવસ્થા, જીવ અવસ્થા માટે એક સ્થિતિ પેદા થાય છે અને એમાં આ વિકાસ ક્રમમાં જીવ અવસ્થા પેદા થાય છે. અને જીવ અવસ્થા પેદા થાય છે એમાં એક ચેન્જ છે. તો શું ચેન્જ છે? કે પ્રાણ અવસ્થા તો એવી છે કે જેને કાપી નાખો તો એ પાછી વિસ્તરે છે, પણ જીવ અવસ્થામાં એવું છે, જીવ અવસ્થા ઉપર તમે કોઈ પણ પ્રહાર કરો તો એવું કરી શકે? એને શું જોઈએ? અને એટલે એમાં આખો એક જુદો મોડ છે. એ છે જીવવાની આશા. એ જીવવાની આશા સાથે જીવ અવસ્થા આવી છે. અને એ જે જીવ અવસ્થાના જે શરીરો છે એમાં પછી એમણે આખો એક ક્રમ સમજાવ્યો કે પહેલાં એવું હતું કે ઊંચા વૃક્ષો હતા, અને ઊંચા વૃક્ષો હતા એટલે આખું જે વાતાવરણ હતું એની અંદર એક પ્રકારની ઉષ્મા હતી અને એક પ્રકારનું તાપમાન હતું અને એના એક પ્રકારના વાયુઓ હતા અને એમાં કાર્બન મોનોક્સાઇડનું પ્રમાણ જે હતું એ ઊંચા પ્રાણીઓ, ઊંચા વૃક્ષો, એમણે એ કાર્બન મોનોક્સાઇડ જે ગ્રહણ કર્યો છે એક સ્થિતિ એવી આવે છે કે જ્યારે એમાં ઉથલપૂથલ થાય છે અને એ બધા જ પ્રાણીઓ અને ઊંચા વૃક્ષો એ જમીનની અંદર, ભૂગર્ભની અંદર દટાઈ જાય છે, જેને આપણે કહીએ છીએ જીવાશ્મી. કારણ કે એ બધા દટાઈ ગયા. જમીનની સપાટીની નીચે જ્યારે દટાઈ ગયા ત્યારે આપણે એને ફોસિલ્સ કહીએ છીએ ને. ફોસિલ્સ શું છે એક્ઝેક્ટલી? ફોસિલ્સ શું છે? એ દટાઈ ગયેલા, આપણે એવું નામ આપ્યું ને ભૂતકાળમાં, સાયન્સે આવું નામ આપ્યું છે, આપણે એને એ રીતે ઓળખ્યું છે અત્યાર સુધીમાં. હવે એ જે દટાઈ ગયું એની અંદર જે પણ કંઈ છે એને કોણે આવીને બહાર કાઢ્યું છે? એક સ્થિતિ એવી ઉત્પન્ન થઈ જીવ અવસ્થામાં કે એના પછીની અવસ્થા કે જે માત્ર કેળવણી નથી, એનામાં માત્ર ટ્રેનિંગ નથી. એને એમ કહો કે ખાલી આ ટ્રેનિંગ છે અને તારે આટલું કરવાનું એવું નથી. એને બધું જ સમજવું છે, એને બધું જ જાણવું છે, જેના ભાગરૂપે જ આપણે અહીંયા બેઠા છે. આપણે બધું જ જાણી લેવું છે અને એ જાણવાની ઉત્કંઠા જે આપણી અંદર છે એના ભાગરૂપે આપણે સમજાવવાના કાર્યક્રમમાં લાગેલા છીએ જ્યારથી આવ્યા ત્યારથી. દરેક બાળક જે આવે છે એને કરવું શું હોય છે? એને બધું જ સમજવું હોય છે કે નહીં? શું કરે? એ સવાલો પૂછે. શું કરવા સવાલો પૂછે? એને બધું જ સમજવું છે કે નહીં? તો એ સમજવાના ક્રમમાં જ આપણે અહીંયા આવ્યા છીએ. આ 4 અવસ્થાઓ વિશે અસ્તિત્વમાં જે વાસ્તવિકતા છે અને આપણે એને જે રીતે સમજીએ છીએ એમાં મૂળભૂત રીતે તફાવત છે. અને જે તફાવત છે એ તફાવત જો આપણે સમજી લઈએ, જે આવનારા 4-5 દિવસમાં સમજીશું, તો ધીરે ધીરે અસ્તિત્વ જેવું છે એવું આપણને દેખાવા લાગશે. આપણી અંદર અત્યારે જે પણ બધી સમસ્યાઓ છે, મૂળ શું સમસ્યા આપણને શું લાગે છે? જેમ એમણે પૂછ્યું કે શું લાગે છે, આ પૃથ્વી રહેશે કે નહીં રહે? આપણને એવો ભરોસો છે કે રહેશે? તો આપણે શું કે માણસ એને રહેવા નહીં દે એવું કહીએ છીએ ને. તો આપણી અંદર એવો એક વિશ્વાસ છે કે અવિશ્વાસ છે? તો હજારો વર્ષોથી માણસ શોધે છે શું?
હજારો વર્ષોથી માણસ એક જ વસ્તુ શોધે છે, વિશ્વાસ. અને વિશ્વાસ ખરેખર શું છે એને હજી દેખાતું નથી. એટલે માણસ માણસની સાથે અને માણસ પ્રકૃતિની સાથે કેવી રીતે જીવવું એ હજી સમજવાના ક્રમમાં છે. આ વાત છે. માણસે માણસની સાથે કેવી રીતે જીવવું અને માણસે પ્રકૃતિ સાથે કેવી રીતે નિભાવવું એ સમજવાના ક્રમમાં આપણે છીએ. હાજી. સોરી, જ્યારે પણ વાતાવરણ અનુકૂળ થાય ત્યારે પ્રગટન થાય, તો માણસનું પ્રગટન તો હજુ પણ થઈ જ રાખે છે. દરેક માનવ તો જન્મે જ છે, તો એનો મતલબ હજુ આપણા માટે એક સંતુલન તો આવી ગયું છે, છતાં માણસનું પ્રગટન જે ગુણાકાર સ્વરૂપે થતું રહે છે. તો જ્યાં સુધી માનવ પ્રગટ થતો રહેશે ત્યાં સુધી એવું માનવાનું કે હજુ સંતુલિત નથી આપણા માટે, કે એટલે તો આખી અવસ્થાનું પ્રગટન છે. માણસનો તો જન્મ થાય છે, બરાબર. માણસના રૂપમાં આખી માણસ જાત એની અવસ્થાનું પ્રગટન છે, એ જ્ઞાન અવસ્થાનું પ્રગટન છે. કે માણસ એટલે શું? તો ભાઈ એક સંપૂર્ણ રીતે વિકસિત મેધસ તંત્રવાળું શરીર જે તૃપ્ત થવા માગે છે અને આ બાકીની જે 3 અવસ્થાઓ છે એની સાથે સંતુલનમાં રહેવા માગે છે. આ છે માનવ. એટલે માનવ વિશેની વ્યાખ્યાને બધું આગળ ભૈયા મૂકશે, જેટલું હું અત્યારે નથી કહ્યું આખી ડિટેલ. પરંતુ તમે જે પૂછો છો કે ભાઈ જે વારે વારે જન્મ થયા કરે છે, એનો મતલબ ક્યાંક આપણી અંદર એવો ઊંડો પ્રશ્ન છે કે આ જન્મ મરણમાંથી છૂટવાનું એ છે સંતુલન? ના, એ સંતુલન નથી. જન્મ મરણની ભવાટવીમાંથી છૂટી જવું, આપણે ક્યાંક એવું ઊંડું આપણી અંદર એવી એક સ્વીકૃતિ બેઠેલી છે ને, જેની ઉપર તો ચર્ચા થઈ, આખી ચર્ચા જ એની ઉપર આધારિત હતી, મોક્ષ વિશેની વાત થઈ. તો આપણે ક્યાંક આ પ્રશ્નના મૂળમાં પણ જો ધ્યાનથી જોઈએ તો આપણો ક્યાં પ્રશ્ન છે કે વારે વારે આ બધું જન્મ થયા કરે છે, મતલબ હજી સંતુલન નથી એમ? ના, એવું નથી. જે પણ બાળકો આવી રહ્યા છે, જે માનવ સંતાન આવી રહ્યા છે, જો એને સમજણનું વાતાવરણ મળે તો આ 4 અવસ્થામાં સંતુલન પ્રમાણિત થઈ શકે એમ છે. કંઈ વાંધો નહીં, સમજી ગયો. એક કામ કરીશું, આ 4 અવસ્થા જે છે એ અવસ્થા વિશે ભૈયા જ્યારે થોડું વધારે મૂકશે ત્યારે આ વધારે સ્પષ્ટ થશે. મને એવું લાગે છે કે એ ત્યાં આપણે એ રીતે એને રહેવા દઈએ. હાજી. આ જે અસ્તિત્વની વાત આપણે કરી રહ્યા છે, હા, અસ્તિત્વ તો અસ્તિત્વના જે નિયમ છે, સંભળાય છે? હા, એ જ નિયમ આપણે પોતાના માનવ જીવનમાં અપનાવીને જીવીએ તો આપણો જે પર્પસ છે એ પૂર્ણ થઈ જાય. પર્પસ એ જ છે ને કે અસ્તિત્વના નિયમ પ્રમાણે આપણે પોતાનું જીવન માનવે જીવવું જોઈએ. કારણ કે બાકી જે અવસ્થા છે એ એવી રીતે જીવી રહ્યા છે, જીવ અવસ્થા, પ્રાણ અવસ્થા, અને તો માનવ એ ભૂલી ગયા છે ને બીજા ટ્રેક પર ચાલી ગયા છે. તો અસ્તિત્વના જે નિયમ છે એ નિયમ આપણે નિભાવવાના છે અને એ પ્રમાણે ચાલવાનું છે. વાત તો એવી છે ને કે માણસે માણસની સાથે અને માણસે પ્રકૃતિની સાથે કેવી રીતે વર્તવાનું છે આની સમજણ મેળવવાની બાકી છે. હજી સુધી આપણે મેળવી શક્યા નથી એવું પ્રમાણ રૂપે તો દેખાય છે. ક્યાંય પણ આપણે અત્યારે કોઈ પરિવાર જોઈએ, કોઈ સંપ્રદાયો જોઈએ, કોઈ રાજ્યો જોઈએ, કોઈ દેશો જોઈએ, તો ક્યાંય પણ સમજદારીનું પ્રમાણ આપણને પૂરેપૂરું મળતું નથી. બટ આમાં અસ્તિત્વમાં આ કન્ટિન્યુઅસ ઇવોલ્યુશન થયા જ કરે છે. તમે જુઓ, ઇટ્સ અ ડાયનામિક સિચ્યુએશન, આખું સૃષ્ટિ. તો આજે આપણે કોઈ વસ્તુ જાણી લેશું, જેમ આઇન્સ્ટાઈને જે એના નિયમ બનાવ્યા હતા, આજે એને પ્રૂવ કરી દીધા છે બીજા લોકોએ કે એ બરાબર નથી, રાઈટ? તો ક્વોન્ટમ એન્ટેંગલ છે એ રિલેટિવ થિયરીને એક્સેપ્ટ જ નથી કરતું, એને ડેવિએટ કરે છે. તો ઇટ્સ અ કન્ટિન્યુઅસ ઇવોલ્યુશન પ્રોસેસ છે આખું. એટલે આજની પરિસ્થિતિમાં જે આપણે જોવા માંગીએ છીએ
દેટ મે બી રાઈટ, બટ ઇટ્સ અ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ. એવું કંઈ પરફેક્ટ નહીં કહીએ કે ધીસ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ. એટલે હવે અહીંયા એક મારી એવી એક રિક્વેસ્ટ છે કે અહીંયાથી જે પણ કોન્ટેન્ટ આવી રહ્યું છે ને એને એ કયા કોન્ટેક્સ્ટથી આવી રહ્યું છે એને પકડવાનો ટ્રાય કરીએ. જેટલું આપણે અત્યાર સુધી જે સમજ્યા છીએ એની સાથે જોડવાનો પ્રયત્ન કરીશું તો અહીંયાથી શું કહેવાઈ રહ્યું છે એ દેખાશે નહીં. અહીંયાથી જે કોન્ટેન્ટ મૂકવામાં આવી રહ્યું છે એ કોઈ જુદા કોન્ટેક્સ્ટથી આવી રહ્યું છે. એ કોન્ટેક્સ્ટને પકડવાનો ટ્રાય કરીએ. જેટલું આપણે એને જૂના કોન્ટેક્સ્ટ સાથે જોડીશું ને એટલી વાર આપણે વધારે ને વધારે એની અંદર ગૂંચવાતા જઈશું, સ્પષ્ટતાથી નહીં જોઈ શકાય. એટલે આ ઓકે તો ભાઈ આ વાત હતી કે અત્યાર સુધીમાં સંસાર આપણે જે બનાવ્યો એમાં આપણે એક પરિવાર બનાવ્યો, સમાજ બનાવ્યો, વ્યવસ્થા બનાવી, અને એમાં તમે એમ કહો છો કે સમાજની અંદર અથવા તો ઇવન પરિવારની અંદર હું સમજદાર છું પણ સામેવાળો સમજદાર ના જ શું કરું? એવી જ વાત છે ને, મૂળ વાત તો એમ જ છે ને. એટલે આપણે અપેક્ષા શું રાખીએ છીએ ખબર છે કે સામેવાળો સમજદાર થઈ જાય તો મારા જીવનમાં ભલે. એટલે જવાબદારી કોના પક્ષે છે? એવું આપણે ખાલી બોલીએ છીએ કે જવાબદારી બેઉ બાજુ છે. ધ્યાનથી જોઈએ, ધ્યાનથી જોઈએ તો આપણે બધા વોટ્સએપ ફોરવર્ડ એટલે જ કરીએ છીએ કે આપણને એવું લાગે જવાબદારી સામેવાળાની છે, લે અમે તને ફોરવર્ડ કર્યું. ફોરવર્ડ કશું ઇનવર્ડ કરવું નથી. આપણે બધું જ ફોરવર્ડ જ કરવું છે, કશું ઇનવર્ડ કરવું નથી. જેટલું આવે છે ને એટલું આપણને એમ લાગે કે આ કોઈ બીજાને ખબર પડી જાય કેટલી શાંતિ થઈ જાય. પેલો રોંગ સાઈડમાં આવે છે, રાઈટ સાઈડમાં આવતો થઈ જાય, મારે કેટલી શાંતિ થઈ જાય. પેલો લાઉડ સ્પીકરથી આટલું બધું બોલ કરે છે, એ લાઉડ સ્પીકર બંધ કરે તો મારે કેટલી. પેલો ફટાકડા ફોડે છે, એ ફટાકડા ના ફોડે તો પેલો પરાળી બાળે છે, ના બાળે તો કેટલી. પેલો યુદ્ધ કરે છે, એ ના કરે તો મારે કેટલી શાંતિ થઈ જાય. આપણે આખી જ જવાબદારી એવું માનીએ છીએ કે આખી જ જવાબદારી બીજા કોઈકની જ છે. ખાલી આપણે એવું ઈચ્છીએ, બોલીએ છે ખરા, પણ આપણને આપણી જવાબદારી શું છે એ પ્રત્યે બહુ સભાનતા અત્યારે છે નહીં. એ સભાનતા કેળવી શકાય એમ છે. ખાલી એક જ સવાલ છે, બીજાને બદલવા સહેલા છે કે પોતાની જાતને બદલવી સહેલી? ठीक है, थोड़ा हिंदी में बोलिए, प्रश्न पूछिए तो मैं आगे बढ़ाता हूँ बात. हाँ भैया, इनका प्रश्न वही है कि जब संसार तो बदल नहीं रहा है हाँ, तो दुनिया में अगर कोई ठीक ठाक नहीं चल रहा है तो फिर सब ठीक कैसे होगा? ठीक है. हाँ, क्यों चल रहा है? उत्तर ये नहीं है नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है वो क्यों पे पहले आना है ना. अगर क्यों का उत्तर नहीं मालूम है तो फिर समाधान कैसे आएगा? तो समाधान में पहले क्यों समझना है. क्यों हो गया भाई? जब यहाँ सब ठीक ठाक था तो इधर गलती क्यों हो गई? नहीं भैया, यहाँ पे पहले स्वीकारने की बात यह है कि अस्तित्व में सब ठीक ठाक है, ऐसा सबको लगता है कि नहीं लगता है? नहीं, अस्तित्व में केवल तीन ठीक ठाक कर रहा है. ये 2 एरो है ना जहाँ तक, तो वहाँ तक ठीक है, और इन तीनों का मानव के लिए ठीक है. जो गलती हो रही है मानव ने जो कंट्रीब्यूशन किया है, तो समस्या या समाधान की जो जगह है वो एक ही जगह है, वो है मानव. ये पहले पकड़ना है. इसलिए मानव के अंदर प्यास है समाधान की, क्योंकि समस्या भी कहाँ से आ रहा है? मानव के पास. तो प्यास किसके पास है? मानव के पास. तो अब मानव को समझते कि क्या हो गया, उसमें कहाँ से गलती हो गई और उसको कैसे ठीक करेंगे. इतनी तो बात है. ठीक है, ज़्यादा बात नहीं है. तो पहले अभी इसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं. तो पहले ये देख लिया कि पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ये तीनों चीज इस तरह से अरेंज हुई कि मानव प्रकट हो. पदार्थ, प्राण, जीव का अरेंजमेंट कैसे है? मानव प्रकट हो. इसका मतलब यहाँ तक संतुलन है. इसका क्या प्रमाण है कि धरती पे संतुलन है? प्रमाण है कि मानव प्रकट हुआ. ये अपने में प्रमाण है कि पीछे की अवस्था संतुलित है. मानव के प्रकट होते ही, तो इस पे अभी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मानव ऑलरेडी प्रकट हो गया. मानव को प्रकट होने में मानव का कोई रोल नहीं है. मानव ने मानव को नहीं बनाया है, मानव को अस्तित्व ने बनाया. और मानव की जो भी ज़रूरतें हैं उसको अगर बेसिक देखिए, ज़रूरत शरीर की ज़रूरत वो है हवा की, सांस लेगा, प्यास लगेगी, पानी पिएगा, और भोजन की. ये सबसे मूलभूत चीज़ें हैं ना. वो फिर प्रकृति ने पहले से ही अरेंज कर दिया. अगर अरेंज नहीं होता तो मानव प्रकट ही नहीं हो सकता,
क्योंकि उसको सांस लेना है, तो सांस लेना है तो सांस लेने की मशीन और जिसको लेना है वो पहले से अरेंज है, तभी तो हुआ। तो ये पहले से आया, मानव का प्रकट हुआ, इसका मतलब धरती संतुलन में है। अब दूसरा सिनेरियो आ रहा है कि मानव में क्या हो गया कि इसने ऐसे सब अव्यवस्था फैलाया। तो मानव के अंदर एक चीज है, वो है ज्ञान। मानव क्या है, एक नया अवस्था को लिख दिया, ज्ञानावस्था। तो मेजर मिस्टेक ये हो रहा है कि मानव को पहचानने में दो लोगों ने गलती किया, या दो तरह का विचार आया जिसने गलती किया। पहला है, मानव को माना गया, जैसे साइंस मानव को किस में कैटेगराइज करता है, जीव में। युवाल नोआ हरारी की जो भी किताब आप पढ़ेंगे उसमें पहली चीज जो इंडोर्स कर रहा है कि मानव क्या है, एनिमल, स्टोरी टेलिंग एनिमल, कोई कहता है सोशल एनिमल, है ना। तो ह्यूमन को हमने एक कैटेगराइजेशन किया है मैमल के रूप में। तो विज्ञान कहाँ ह्यूमन को प्लेस कर रहा है, एज ए मैमल, ठीक है। और अध्यात्म क्या बोल रहा है, आपने सुना होगा मंदिरों में धर्म की, बोलिए, नहीं मालूम है, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में सद्भावना हो। तो प्राणी कौन है, मानव। जीव जानवर क्या है, प्राणी। जीव जानवर क्या है और मानव क्या है। पहले ये समझिए कि दो वादों ने, अध्यात्म ने और भौतिकवाद ने, मानव को प्लेस किया एज ए एनिमल, एज एन एनिमल के रूप में प्लेस किया। तो मानव और एनिमल में अंतर है, ये अभी हम स्पष्ट नहीं कर पा रहे। अब मानव में और एनिमल में क्या चल रहा है। तो मानव अगर पहली बार प्रकट होगा तो किसके शरीर से प्रकट होगा, जैसे मानव प्रकट हुआ तो किसके शरीर से प्रकट होगा, एनिमल्स के, क्योंकि उसके पहले तो एनिमल है, तो एनिमल के शरीर से ही आएगा, है ना। तो एनिमल के शरीर से आएगा तो उसको सबसे नजदीक अपने जैसा कोई दिखेगा, तो कौन दिखेगा, एनिमल्स। तो एनिमल के अंदर भी एक जैसे फूड है, मान लो गाय है, पैदा हो जाएगी, तो गाय किसके लिए काम करे, उसको खाना है कुछ ना, जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, खाएगी। तो खाने के लिए गाय के अंदर उसके जेनेटिक में ही एक कोडिंग है कि गाय क्या खाएगी या बाघ क्या खाएगा। तो गाय शाकाहारी हो गई और बाघ मांसाहारी हो गया, ये उसने चूज किया, तय किया कि उसके जेनेटिक में है, उसके जेनेटिक्स में, राइट। इसको तय नहीं कर रहा है। अब मानव आया और मानव देख रहा है किसको, संसार, ये सब दिख रहा है जो ना, अब अस्तित्व को देख रहा है। तो देख रहा है तो सबसे पहले किसको देखा, अपने से नजदीक प्राणियों को, जीवों को। तो उसको लगा वो मेरे जैसा है, इसलिए उसको बोल रहा है ये भी प्राणी और मैं भी प्राणी, ये भी जीव और मैं भी जीव। तो देखा तो उसमें जानवरों में दो तरह का आहार है, एक शाकाहारी है और एक मांसाहारी। तो मानव क्या बन गया, दोनों बन गया, क्योंकि दो तरह का आहार हो रहा है ना। तो शाकाहारी, तो मानव के जेनेटिक्स में आहार नहीं है, मानव तो देख करके समझ करके कुछ करना चाहता है, वो ज्ञान अवस्था की चीज है। तो कल्पना है उसमें, कल्पना आया तो कल्पना दौड़ाया तो उसने देखा दो तरह के आहार, कुछ जानवर शाकाहार और कुछ जानवर मांसाहार। तो मानव ने दोनों तरह के आहार को अपना लिया, कुछ शाकाहारी हो गए और कुछ मांसाहारी। ये जो उसने सीखा वो किससे सीखा, एनिमल से सीखा। पकड़ में आ रही है बात। तो मानव ने एनिमल से सीखा कि हमको क्या आहार करना है, तो उसका गुरु कौन हुआ, एनिमल्स। तो एनिमल हमारे गुरु, और वहां से हमने अपना ज्ञान शुरू किया, समझे आप, वहां से गड़बड़ी हुई। अब उसमें क्या हो रहा है, और आगे जाओगे, अब दिखा कि जो एनिमल है उसमें भी दो तरीके के हैं, एक बहुत स्ट्रांग जंगल का राजा, लॉयन, राइट, और एक है हिरन, भेड़ बकरी, राइट। अब भेड़ बकरी खाती है घास और जंगल का राजा खाता है मांस। अब घास खाए कि मांस खाए, ये मामला फंसा। और जो मांस खाता है वो जंगल का राजा,
और हमको भी क्या बनना है, तो मेरा आहार क्या निकल गया, जो मांस खाएगा उसका शरीर मजबूत। ये मान्यता कब से चल रही, तब से लेकर आज तक, आदिकाल से चल रहा है। तो अभी भी जिनको लगता है कि मुझे शरीर मजबूत करना है, उनको क्या खाना चाहिए, मांस खाइए। ये समझ कहाँ से आ रही है, समझ है या हमने देखा, किसका अध्ययन किया, प्रकृति का अध्ययन किया। तो मनुष्य का अभी तक का ज्ञान किससे आया है, प्रकृति में, वो भी प्राणियों का प्राइमरली, मतलब प्राणी भी नहीं बोलो, जीवों का प्राइमरली। तो जीवों का अध्ययन करके उसने आहार पद्धति तय की। आज भी विज्ञान अंतर नहीं कर पाया है कि मनुष्य का आहार क्या है। सबसे बेसिक चीज अभी भी तय नहीं है कि हमारा आहार क्या है। विज्ञान मानता है कि मनुष्य सर्वाहारी है। ऑमनीवोरस है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू साइंस। आप लोग तो विज्ञान पढ़े हो ना, साइंस में मनुष्य का आहार क्या है? मेडिकल साइंस ने ये प्रूव किया है कि ह्यूमन शरीर जो बना है वो नॉन वेज के लिए नहीं बना है। उनका जो इंटेस्टाइन है उसमें डाइजेशन सिस्टम जो बना है वो सिस्टम वेजिटेरियन के लिए ही है। मेडिकल साइंस ने नहीं प्रूव किया है। हर एक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है, आपके अंदर जो ही प्रोटीन की कमी हो जाएगी इसकी को बताएगा, आपको जाइए मछली का तेल लीजिए और उधर फैटी एसिड लीजिए और आप बात बता रहे। साइंस ने नहीं प्रूव किया है। उसमें भी क्या होता है, साइंस में एक बड़ा ग्रुप है जो एक माइनर कम्युनिटी है, बहुत छोटी सी कम्युनिटी विद इन द वास्ट साइंटिफिक कम्युनिटी। अभी भी आप अमेरिका में चले जाइए, कनाडा में चले जाइए, हर एक स्कूल में फूड के बारे में लिखा हुआ उसके मेन्यू। तो यहाँ पे बीफ का कैसा बीफ, ये कैसा, हर एक स्कूल का मेन्यू है। और वो मेन्यू इसलिए दे रहे हैं क्योंकि साइंटिफिक प्रूवन है, इट इज़ हेल्दी फॉर यू। हेल्थ के लिए आपको खाना चाहिए ये सब। गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी दे रही है, अनसाइंटिफिक बात नहीं कर रहे। उसका प्रूफ बैकअप कहाँ से ले रहे हैं, धर्म से नहीं ले रहे, उसका बैकअप उनके पास साइंस से आ रहा है कि अकॉर्डिंग टू साइंस आपको न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन में आपको ये चीज़ चाहिए और इतना लोगे तो आपका न्यूट्रिशन पूरा होगा। न्यूट्रिशन की जगह ये चीज़ें हैं, उसका कोई डिमार्केशन लाइन नहीं है। अब बात आई कि शाकाहार है मांसाहार है, शरीर क्या डिजाइन है। बहुत हम तो इंटेस्टाइन तो कोई देखेगा नहीं, मैं आपको एकदम खुला खुला बताता हूँ। आपने कभी बकरी को, गाय को पानी पीते हुए देखा है? कैसे पीता है? अभी नहीं देखा है। यूट्यूब पे सदुपयोग करिए यूट्यूब का, आज जाइए गाय को पानी पीते हुए देखिए, वोंट से पानी पीता है। हाँ, वोंट से सक करके पानी पीता है। चाहे गाय हो, बकरी हो, हिरन हो, कोई भी शाकाहारी जीव है, एक भी अपवाद नहीं है। हर एक शाकाहारी जीव वोंट से पानी पीता है। और कुत्ता है, बिल्ली है, भालू है, शेर है, जीभ को बाहर निकाल के ऐसे लैप करके अंदर ले आते हैं। तो लैप करते हो तो ऐसे जीभ जाएगा, थोड़ा वो मुड़ जाएगा, उसमें से पानी आ जाएगा और अंदर ले आता है। आप वैसे पानी पिएंगे तो आपका जीभ मुड़ेगा नहीं और आएगा नहीं। दिन भर पीते रहेंगे और पता चला प्यास ही नहीं बुझ रही है, राइट। तो प्यास बुझाना है तो फिर गाय जैसे पानी पीना पड़ेगा ऊंट से। फिर दूसरी बात आती है, जितने भी शाकाहारी जीव हैं उनका जो क्या पीछे वाला दांत, मोलर्स फ्लैट होता है सभी शाकाहारी का। आप कभी कुत्ते का दांत ऐसे खोल के देखिए, जो आपके घर वाला हो, बाहर वाला नहीं तो पता चला एक और प्रॉब्लम हो गया कुत्ते का अध्ययन करने में। हाँ, उतना वेरिफिकेशन नहीं, घर वाले कुत्ते का किसी का हो तो, और आपके घर में नहीं, किसी के घर में हो देख लीजिए, या पिल्ला हो उसका देख लीजिए। खोलेंगे तो पीछे वाला जो मोलर है वो शार्प है, और हर एक मांसाहारी का मोलर शार्प होता है। और जो भी शाकाहारी हैं, गाय हो, बकरी हो, मानव हो, उसका मोलर फ्लैट है। ये दूसरा चीज़ है। तीसरा, जो भी शाकाहारी है और मांसाहारी है, तो मांसाहारी का जो मुंह है केवल ऊपर नीचे खुल सकता है।
ये साइड बाय साइड नहीं कर सकता। जैसे गाय पगुरी करती है तो थोड़ा साइड बाय साइड करती है, हम भी कर सकते हैं, राइट। तो अपना प्रूफ हो गया कि भाई अपन लोग उस कैटेगरी में नहीं है। उधर क्या है, इधर इधर नहीं जा सकता, बस ऊपर नीचे करेगा। इतना तो मुंह के अंदर डिजाइन है, आंत के अंदर जाने की बात ही नहीं है। मुंह में ही पता चलता है कि हम लोग शाकाहारी हैं, ठीक है। लेकिन मनुष्य जब मांसाहार कर रहा है तो उसके जेनेटिक में नहीं है, सीख कर रहा है। तो ह्यूमन जो भी कर रहा है, इवन आहार कर रहा है, वो जेनेटिक विधि से नहीं कर रहा है। वो बात क्या कर रहा है, सीख रहा है। किससे सीख रहा है? जानवरों से सीखा, ठीक है। तो जानवरों से सीख करके उसने अपना कार्यक्रम शुरू किया। इसका नाम है जीव चेतना। ये जानवरों से जो सीख कर किया, तो मानव में एक कैटेगरी हो गई, मानव में जीव चेतना। तो उसमें आहार, जानवर क्या है, टेरिटोरियल होते हैं। अपने शरीर को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, टेरिटरी बनाते हैं। उसके टेरिटरी में दूसरा नहीं आ सकता। जैसे कुत्ता है तो कुत्तों की अपनी एक गैंग होती है, राइट। मानव भी गैंग बनाता है और उस गैंग का काम है टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना। दूसरा आ गया, भले ही उसी का बिरादरी का है, लेकिन लगता है भाई मेरे बिरादरी का नहीं है कुत्ता, तो कुत्ता दूसरे की एंट्री नहीं होने देता। या हिरन है, हमारे यहाँ कनाडा में जंगल है बहुत सारा, तो मेरे यहाँ जंगल में 30 एकड़ की प्रॉपर्टी, उसमें 20 एकड़ खुला हुआ है। तो हम कभी भी हिरन को देख सकते हैं, हर दिन रहता ही है, सुबह दोपहर शाम रहता ही है। उसमें 10 हिरन है, 10 ही रहता है। 10 हिरन है तो 10, तो मैं सोचा 11वां क्यों नहीं आता है, आने ही नहीं देते वो सब, जबकि घास बहुत है। हम तो काटते भी नहीं घास, कुछ नहीं करते, बेचते भी नहीं, इतना घास है। उसको 10 नहीं 100 हिरन खा सकता है, लेकिन 10 ही रहते हैं। उन्होंने अपनी टेरिटरी बना रखी, उसके बाउंड्री में एंट्री नहीं होने देते, ठीक है। तो टेरिटोरियल है। ऐसे भालू का, सभी का टेरिटरी बन के रखा है। ग्रिजली बेयर का तो 40 किलोमीटर एरिया है, उसमें दूसरा ग्रिजली बेयर आ ही नहीं सकता। ऑलमोस्ट इतना बड़ा एरिया में अकेले रहता हूँ। तो टेरिटरी, ह्यूमन ने भी टेरिटरी बनाया। कहां से बनाया? उधर से सीखा, वहां से टेरिटरी बना, लैंड ओनरशिप। वो लैंड ओनरशिप का चलते चलते कहां तक पहुंच गया? नेशन स्टेट। नेशन स्टेट भी अभी क्या है? एक टेरिटरी है। तो ह्यूमन ने जो टेरिटरी बनाई वो एनिमल को देखकर बनाई। अदरवाइज धरती पे टेरिटरी ह्यूमन के लिए नहीं है, पूरा धरती अखंड है। तो जो खंड किया वो जानवरों से सीखकर किया। फिर भाई मारपीट की बात आई, किसको रहना है किसको नहीं रहना है, किस आधार पे होगा। मारपीट किससे सीखा? फिर आई कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्या ज्ञान की बात आई ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो भाई कहां से आया? क्योंकि फिटेस्ट कौन है? जो मजबूत है, हाँ? जो मजबूत होगा उसको सरवाइव करना है। फिर आ गए कोई जो गन लेकर आ गए यहाँ पे, मान लो भारत में आ गए कुछ लोग, उनको क्या लगा? विज्ञान ने प्रूफ कर दिया है। क्या प्रूफ कर दिया विज्ञान ने? सर्वाइवल ऑफ द। तो हम तो स्ट्रांग हैं, तो जीने का हक किसको? स्ट्रांग को। आप लोग चलो गुलाम बनो, बाकी मैं जीता हूं। इस आधार पे वैज्ञानिक तथ्य पे काम शुरू हुआ, ठीक है। ऐसे ही गुलाम बने हैं, जानवरों को देख करके लोगों ने गुलाम बनाया। ये भी वहीं से आया गुलामी की प्रथा, जानवरों से आई गुलामी की प्रथा। फिर आगे पर पुरुष पर नारी, ठीक है। एक आदमी कई सारे लोगों के साथ शारीरिक संपर्क कर सकता है। कहां से आई बात? पशुओं से। आप कोई चीज निकाल ही नहीं सकते हैं। जो चीज हमने अभी किया है और पशुओं को देखकर नहीं किया है, तो पूरा जो ज्ञान हमारे अंदर है वो पशुओं को देख करके हमारे अंदर ज्ञान हुआ है। उसका नाम है जीव चेतना। जीव चेतना के ज्ञान से
उसने एक संसार बनाई। अब पशुओं में जो आहार था, पशुओं के आहार का प्रयोजन शरीर नहीं है। पशु का आहार क्या करता है? ये जो संतुलन है उसको लाने के लिए उसका आहार है। और हमने आहार शुरू किया सर्वाइवल के लिए, अपने शरीर के लिए। पूरी शिक्षा हमने कहाँ सेट कर दी? धीरे धीरे सर्वाइवल के लिए। आज बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, जो लोग भी भेज रहे हैं, वो किस बात के भय से या किस बात को बेस बनाकर स्कूल में भेज रहे हैं? सर्वाइवल के लिए। प्राइमरली गोल क्या हो गया हमारा? जबकि सर्वाइवल से करने वाली चीज कौन थी? जीव। जीव में क्या है? सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट है। वो हर काम क्यों कर रहा है? सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर जीने की आशा है। और ह्यूमन क्या चाहता है? हर बात में समाधान। तो इसका जो मौलिकता है, इसकी जो ओरिजिनलिटी है, या इसका जो यूनिक फीचर है एनिमल का यूनिक फीचर है सर्वाइवल, और ह्यूमन का यूनिक फीचर है समाधान, सुख। दोनों में अंतर ये है। तो ह्यूमन को हर काम सुख के लिए करना है और इसका हर काम सर्वाइवल के लिए करना है। अब हमको सुख और सर्वाइवल में अंतर नहीं पता चला और हमने सुख और सर्वाइवल को मिक्स कर दिया। यहीं से प्रॉब्लम शुरू। तो हम लोग सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं। अभी जो भी काम करते हैं, आप देखिए, हमारा बेसिक जो ड्राइव है काम करने का, जो बेसिक पुश है, सबसे पहली चीज क्या आती है हमारे अंदर? सर्वाइवल। यहां से मेजर मिस्टेक हो रहा है। ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बना ही नहीं है, ह्यूमन समाधान के लिए बना है। यदि समाधान होता है तो सर्वाइव नहीं करेगा, थ्राइव करेगा। ह्यूमन क्या करेगा? थ्राइव। सर्वाइव की बात ही नहीं मनुष्य में। ह्यूमन वांट टू थ्राइव। थ्राइव का मतलब है प्रॉस्पेरिटी। अभी हम सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब वो भी नहीं पूरा हो रहा है जो जीव कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। चींटी का बायोमास कितना होगा धरती पे? कितनी चींटियां होंगी? और ह्यूमन का बायोमास कितना है? एक भी चींटी स्ट्रगल नहीं कर रही है। हाथी बहुत बड़ा शरीर लेके बैठा है, उसको भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। पेड़ पौधों को भी खाना चाहिए। एक भी पेड़ पौधा ऐसा नहीं कि उसको पानी और हवा का अभाव हो गया और पेड़ पौधा, है ना, एक समय आ गया कि भाई पेड़ पौधे के लिए अब हवा नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो सर्वाइवल है ह्यूमन के लिए, ये ह्यूमन के लिए बना ही नहीं है। एक्चुअली ह्यूमन के लिए बना है सुख, और सुख के बाद बना है थ्राइव। उसके बाद वो थ्राइव करता है, मतलब प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस में जीना है। तो ह्यूमन के लिए दो चीज आई, एक आया समाधान और दूसरा आया अबंडेंस, समृद्धि। और एनिमल के लिए है सर्वाइवल केवल। तो दो चीज मानव को चाहिए, समाधान और समृद्धि। एनिमल कभी भी फूड में उस तरह की चीजें नहीं कर सकता जो ह्यूमन कर सकता है। तो ह्यूमन फूड को बहुत प्रॉस्पर कर सकता है, ह्यूमन मकान को बहुत प्रॉस्पर कर सकता है, ह्यूमन कपड़े को बहुत प्रॉस्पर कर सकता है, ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन को ला सकता है। ये सब ह्यूमन कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर इनबिल्ट है कि वो थ्राइव कर सकता है, राइट। तो ये जो प्रॉब्लम आया है जीवों को देख करके जीने से, उसके चेतना में प्रॉब्लम आया, वो है जीव चेतना का प्रॉब्लम। तो जीव चेतना के बदले में क्या चाहिए मानव में? इसके बदले में चाहिए इसमें मानव चेतना। अब मानव चेतना क्या है? इसमें क्या चाहिए? मानव चेतना। तो संसार में अभी तक प्रकट क्या नहीं हुआ? मानव चेतना प्रकट नहीं हुआ। मानव चेतना में क्या चीज हो रही है? मानव चेतना में ये हो रहा है कि उसने ये पूरा जो चारों अवस्था है इसको समझ लिया है। क्या समझ लिया? इसकी क्या मौलिकता है, इसका क्या यूनिक फीचर है, इसका क्या यूनिक फीचर है, इसका क्या यूनिक फीचर है, और इसका क्या यूनिक फीचर है। तो चारों अवस्था को संतुलन बनाने के लिए हर एक का एक यूनिक फीचर है, हर एक का एक अलग मीनिंग है, इसमें इसका एक अलग अर्थ है। तो पदार्थ अवस्था एक अलग अर्थ के साथ, एक अलग मीनिंग के साथ, एक अलग रोल के साथ,
एक अलग ढंग से, एक अलग मौलिक तरीके से, एक अलग यूनिक तरीके से चारों अवस्था के संतुलन को बना रहा है, और जैसा ये कर रहा है बाकी कोई नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको पदार्थ अवस्था बोला गया। फिर प्राण अवस्था जिस तरीके से चारों अवस्था के संतुलन को बना रहा है वो एक अलग मौलिक तरीका है, बिल्कुल यूनिक तरीका है जो बाकी में नहीं है। ये जो कर रहा है वो अलग तरीके से चारों अवस्था के संतुलन को बना रहा है। और मानव की एक अलग मौलिकता है जो इनसे भिन्न है, जो अपनी मौलिकता के साथ चारों अवस्था में संतुलन को बनाता है। मानव की मौलिकता है ज्ञान। मानव की मौलिकता क्या है? ज्ञान। ज्ञान पूर्वक चारों अवस्था के संतुलन को बनाता है। तो यदि संसार ऐसा प्रकट हुआ जिसमें हर जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हुए हैं, तो क्या कमी रह गई मानव में? क्या नहीं हुआ? ज्ञान नहीं हुआ। तो संसार जो अभी बिगड़ा हुआ है, उस बिगड़े हुए संसार का मूलभूत कारण क्या है? ज्ञान का अभाव। ज्ञान नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि वही तो ज्ञान होना। अब दो तरीके से हो सकता है। एक तो ज्ञान पहले से ही दे दो, मतलब पैदा हुआ और ज्ञानी हुआ, तब तो पदार्थ अवस्था जैसा हो गया, क्योंकि उसको अवेयरनेस ही नहीं है। तो इसमें भाई ये भी नियम से ही जी रहा है, लेकिन इसमें ज्ञान नहीं हो रहा है। अब इसको भी मान लो इनबिल्ट ही कर देते, पैदा हुआ और ऐसे ही दीना है जैसे अस्तित्व में है, तब तो ये पत्थर जैसा ही हो गया ना, या पेड़ जैसा ही हो गया। यही तो इसकी ब्यूटी है कि इसको ज्ञान होकर के ज्ञान पूर्वक जीना है। ये उसको ज्ञान होना, ये देखना ही उसके लिए सुख है। तो पहला काम करता है कि इसको देखता है, इसको समझता है कि अस्तित्व क्या है। तो अस्तित्व जैसा है वैसा समझ में आया तो सुखी हो गया। एक सुख ये हो गया। और दूसरा क्या है? ये जो सुख है उसको संसार में प्रमाणित किया, तो ये दूसरा भाग हो गया उसका। ठीक है ना? अगर संसार में रेप्लिकेट नहीं कर पाया तो इसका मतलब कहां कमी रह गई? उसको ज्ञान ही नहीं हुआ था। तो संसार में यदि मान लो परिवार में प्रॉब्लम है तो एक ही प्रॉब्लम है, अभी हमको ज्ञान नहीं है। अज्ञानता ही उसका मूल कारण है। संसार में जो अभी समाज अपना पराया, इतनी सारी बाउंड्रीज, इतने सारे आपाधापी क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्ञान नहीं है। व्यवस्था में क्या प्रॉब्लम है? ज्ञान का अभाव है। प्रकृति के साथ असंतुलन क्यों हुआ? क्लाइमेट चेंज क्यों हुआ? क्योंकि ज्ञान नहीं है। उसी को रफ भाषा में समझ कह रहे हैं। तो समझा नहीं है। तो मानव के लिए दो काम है। एक क्या है? ज्ञान संपन्न होना, है ना। एक पहला काम क्या निकला? ज्ञान होना या समझ होना। ठीक है, ज्ञान या समझ होना, ये काम। और फिर ये तो अस्तित्व में ज्ञान कहाँ होगा? संसार में ज्ञान हो सकता है? अभी हम सारा ज्ञान कहाँ ले रहे हैं? सारा स्टडी कहाँ चल रहा है? ये जो लगातार लाखों साल से प्रॉब्लम दर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से प्रॉब्लम, उससे करते 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 हम जहाँ पहुँचे उसी का स्टडी हो रहा है। तो अभी ह्यूमन साइकोलॉजी का स्टडी कहाँ हो रहा है? संसार में। मतलब उसका एंटेंगल हो चुका है ऑलरेडी। वो ऑलरेडी डिप्रेस है, ऑलरेडी, है ना, एंजाइटी में है, इसमें है, उसमें। अब उसके साइकोलॉजी का अध्ययन होगा, हो सकता है? भाई उसके मानसिकता का कैसे अध्ययन होगा? पहले तो अस्तित्व में मानव का जो हेल्दी माइंडसेट है, पहले तो वो पता चलेगा ना। तो हेल्दी माइंडसेट क्या होता है तो पता है, वो तो ज्ञान से होता है और वो हमको पता नहीं है। तो हम प्रॉब्लम का अध्ययन कर, ऐसे इकोनॉमिक्स, ऐसे ही क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, क्लाइमेट सोल्यूशन। लेकिन स्टडी किसका कर रहे हैं? समस्या का। अब समस्या का जब स्टडी कर रहे हैं तो समाधान कैसे आएगा? समझ रहे हो? इसलिए स्टडी करके अभी एक नया सोल्यूशन ला रहा है कि भाई धरती बहुत गर्म हो रही है। क्यों गर्म ज़्यादा हो रही पता है? क्योंकि गर्मी को सोखने वाली चीज जो धरती के अंदर थी वो बाहर आ चुकी है। धरती को सोखने, गर्मी को सोखने वाली चीज थी कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो था अंदर। अब वो कहाँ आ गया?
तो जो भी हीट आ रहा है वो हीट अभी वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो इससे वातावरण में गर्म हो रहा है। तो इन्होंने एक नया सोल्यूशन लाया है अभी, और बहुत डर भी रहे हैं क्योंकि सबसे खतरनाक सोल्यूशन में से एक है। एक बार 1981 में एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी हुआ फिलीपींस में, और उसका जो गुबार है सब बहुत दूर तक ऊंचा गया, पूरा फैल गया। पूरा फैलने से एक चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व किया कि टेम्परेचर 2-3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। ठीक है, तो इसका स्टडी हुआ, उसमें से जो भी निकला सल्फर डाइऑक्साइड, क्या निकला गैस मुझे नहीं मालूम है, बट जो भी निकला उससे ये लगा कि यार धरती का तापमान कम हो रहा है। तो इन्होंने ये सोचा कि अब भी अगर हम लोग धरती के ऊपर वातावरण में एक मोटा गैस का लेयर बैठा दे जिससे सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा, तो पेनिट्रेट नहीं करेगा, तो लाइट को अगर हम रोक दें, है ना, तो इधर क्या होगा, ठंडी आ जाएगी धरती पे। तो सूरज के प्रकाश को रोकने के लिए एक पूरा व्यापक स्टडी चल रहा है, और उससे धरती पे ठंडी आएगी, क्योंकि जब ना लाइट आएगी ना हीट आएगी तो धरती ठंडा होगा। अब उसमें डर ये है कि कहीं उल्टा न पड़ जाए मामला, ये भी है कि ऐसा ना हो जाए कि सूरज को प्रकाश को रोक दें और हमारे लिए संकट खड़ा हो जाए। तो इसका स्टडी अभी नहीं हो पा रहा है। बाकी जो सीडिंग करते हैं उससे तो उन्होंने देखा कुछ हो सकता है बदलाव, देखा नहीं धुआं, तो सीडिंग करते रहते हैं, आर्टिफिशियल रेन के लिए ये सब करते हैं। अब वो बड़ा स्केल पे चाहते हैं कि इसको पूरा कवर करो। क्यों? क्योंकि जो तापमान है पिछले 10 साल में बहुत तेजी से बढ़ गया, अभी 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। 1.5 पे मानते हैं कि पूरा एक ऐसी जगह पहुंच सकते हैं जहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। आज के समय में जो मैमल्स हैं, लगभग मैमल्स का 80% मैमल्स डिसअपियर हो चुके हैं। वर्टिब्रेट्स का देखो, पूरे वर्टिब्रेट्स को मिलाकर देखो तो लगभग वर्टिब्रेट जिसकी रीढ़ की हड्डी है, ऐसे सभी जानवर लगभग 68 to 70% विलुप्त हो चुके हैं ऑलरेडी, होना नहीं है, हो चुके हैं। और रेन फॉरेस्ट, अमेज़न का जो रेन फॉरेस्ट है उसमें जिस तरह से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो 1.2 पे ही, लोगों का इतना अनुमान नहीं था, तो 1.2 पे ही आकर करीब 25% से ज़्यादा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी दिख रहा है, लगभग 15 से 25%। तो लोगों को लग रहा है कि अगर 1.5 पे पहुँचेगा या 2 पे पहुँचेगा, 5 या 2 डिग्री सेल्सियस, तो हो सकता है कि एकदम कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन आ जाए। तो लोगों को नहीं मालूम है कि समाधान क्या है, और कोई भी अपने लाइफ स्टाइल को आज बदल नहीं सकता, कोई भी मेजर बदलाव संभव नहीं है। हमको उसी दिशा में जाना है, क्योंकि हर एक देश का जो मेजर है सक्सेस का वो जीडीपी पे डिपेंडेंट है, और जीडीपी बढ़ने के लिए कंजम्पशन जरूरी है, और कोई तरीका ही नहीं है। जितना ज़्यादा कंजम्पशन होगा उतना ही ज़्यादा जीडीपी ग्रो करेगी। अब कंजम्पशन होने का 2-4 तरीका है। एक है परिवार टूटे, परिवार टूटेगा तो राष्ट्र का विकास होगा। पता है कैसे? कोई अनुमान? जैसे भारत को अगर तरक्की करना है तो परिवार का टूटना जरूरी है, अदरवाइज ग्रो ही नहीं कर सकता। हाँ, तो क्या है, जैसे अगर परिवार साथ में है तो आपको एक घर में काम हो गया, राइट। अब एक घर है तो उसमें एक लिविंग रूम होगा, उसमें एक काउच का सेट रख दिए, और एक किचन होगा, उसमें एक रेफ्रिजरेटर होगा, एक वॉशिंग मशीन होगी, है ना, एक स्टोव होगा, एक गैस सिलेंडर चाहिए, एंड सो ऑन। तो लगभग एक एक चाहिए। अभी परिवार स्प्लिट हो गया, मान लो एक के जगह पे 3 भाग हो गया, 4 भाग हो गया, 5 भाग हो गया, तो 10 की बजाय 2-2 हो गए, तो अभी 5 घर चाहिए। तो हो सकता है कमरे की संख्या तो मान लो कमोबेश वही, उधर 5 कमरे चाहिए, इधर भी एक एक कमरा चाहिए, लेकिन वहाँ भी एक शायद गेस्ट के लिए चाहिए, तो एक एक कमरे की साइज बढ़ेगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा वो जो दूसरा खर्च है, लिविंग रूम सबको चाहिए, फिर किचन चाहिए, फिर उसमें रेफ्रिजरेटर, फिर उसमें वॉशिंग मशीन, फिर उस पर स्टोव, फिर उस पर सभी चीज़ें। तो अभी एक के बजाय 5 चाहिए, और जो ही 5 होगा इकोनॉमी आपकी
बढ़ेगी। अब हम लोग क्या करें, तरक्की हुआ कि नहीं। दूसरा, समाज में जितना ही वैमनस्य होगा, समाज जितना टूटेगा, जितना भय होगा, उतना ही हमको ज़्यादा वेपन्स चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। जब वेपन्स ज़्यादा चाहिए, मतलब युद्ध अगर ज़्यादा होगा तो जीडीपी क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। ऐसी बीमारी, अगर बीमारी ज़्यादा है तो डिमांड बढ़ेगा तो ज़्यादा जो एक्सपेंस आपके बढ़ेंगे, तो आप ज़्यादा दवाई खरीदेंगे, फिर ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी, तो प्लेसमेंट होगा सबका, है ना। तो लोगों को नौकरी मिल रही है, इस तरह से जीडीपी ग्रो करेगा। अगर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बढ़ गया, आपके अंदर ज़्यादा बोरिंग सिचुएशन आ रही है, आप अपने अंदर हताशा, निराशा को देख रहे हैं, तो इससे जॉब का क्रिएशन होगा। साथ साथ अगर लाइफ बोरिंग है तो आपको बहुत ज़्यादा सामान चाहिए, सामान खरीदेंगे ज़्यादा, तो जीडीपी, पूरा का पूरा हमारा विकास मनुष्य के सफरिंग पे डिपेंडेंट है। जितना ह्यूमन सफ़र करेगा उतना ही ज़्यादा हम विकास करेंगे। ये तो हमारा मॉडल है, पूरा यही हो रहा है। आप ठीक से उसको देखिए, स्टडी करिए, आपको पता चलेगा कि जीडीपी का ग्रोथ ह्यूमन के डिससैटिस्फैक्शन पे डिपेंडेंट है। जितना आप अभी आपका मान लो परिवार अच्छे होने लगे, ठीक है, अब परिवार अच्छा होगा तो आपके अंदर खुशहाली हो गई, खुशहाली हो जाएगी तो आप सामान ज़्यादा खरीदेंगे कि कम। अब मान लो सभी लोग साथ में मिलकर रहने लगे तो ऐसे करके हमारा डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा तो मार्केट क्रैश। अब मार्केट कैसे चलेगा। तो इस तरह से फंस गया मनुष्य कि क्लाइमेट चेंज हो चाहे धरती खत्म हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको जाना उधर ही है। ऐसे फंसा हुआ है मानव, समझ रहे। वो देख रहा है, गवर्नमेंट भी देख रहा है कि ये सब होने से प्रॉब्लम है, लेकिन क्या वापस ले सकता है अपनी पॉलिसी? नहीं ले सकता है, उसके लिए संभव नहीं है। कुछ लोग सोच रहे गवर्नमेंट सोल्यूशन को लाएगी, कभी नहीं ला सकती। गवर्नमेंट के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट को शासन में बने रहना है, किसी भी दुनिया के गवर्नमेंट हो, उसका एक काम है शासन में बने रहना। शासन में बने रहने के लिए जो लोकप्रिय डिमांड होते हैं, वो लोकप्रिय डिमांड के अनुसार उसको चलना होता है। लोगों की क्या चाहत है। अब लोगों को तो पहले ही से ब्रेन वॉश कर दिया है कि आपको सुखी होने के लिए क्या चाहिए, सुविधा, वो तो पहले से है, और उसी सुविधा के चक्कर में सब बर्बाद हो रहा है। तो यहाँ पे क्या एक अलग बात कह रहे हैं कि आपको दो चीज़ें चाहिए, एक है निरंतर सुख। तो निरंतर सुख के लिए क्या चाहिए, पहला चीज ज्ञान या समझ, और दूसरा चीज उस समझ का संसार में प्रमाण। प्रमाण क्या है, संसार। यदि यह संतुलन संसार में प्रमाणित हो गया तो इसके फलन में क्या हो गया, आप क्या हो गए, सुखी या निरंतर सुखी। तो सुख क्या हुआ, ज्ञान, ज्ञान के आधार पे जीना, समझ हो गया, प्रमाण मतलब जीना, समझना और जीना, समझ के अनुसार जीना। तो ये सुख कैसा हो गया, निरंतर। तो समझ के अनुसार जीना, इसी का नाम है समाधान। इसका नाम क्या हो गया, समाधान। और समाधान ही क्या है, सुख है। जी। अभी आपने जो बताया कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, जिसके कारण हमारा धरती का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए अभी तक 3 या 4 मीटिंग हो गई है अराउंड 193 कंट्री की। उसमें आई थिंक 2 साल पहले ये डिसीजन लिया गया था कि इंटायर ग्लोब में रिन्यूएबल एनर्जी 500 गीगावाट का अगर हम उपयोग करें तो हमारा टेम्परेचर 0.5 डिग्री कम हो सकता है। तो उस मीटिंग में 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, वो कैपिटल
उन्होंने बोला गया है कि जो डेवलपिंग कंट्री है, क्योंकि ये जो भी हो रहा है मैक्सिमम जो डेवलपमेंट के नाम से, उसी कंट्री में ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जो एडवांस कंट्री है जो ऑलरेडी डेवलप्ड है वो बोलते हैं हम कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, डेवलपिंग कंट्री को कंट्रीब्यूट करना है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो फर्स्ट मीटिंग में तो ये डिसीजन लिया गया, सब ने बोला ठीक है। सेकेंड मीटिंग में जब ये डिसीजन लिया गया है कि अभी इंडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि 200 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का जनरेशन इंडिया शुड डू, और इंडिया शुड स्पेंड दैट मच ऑफ कैपिटल। सो अभी लास्ट जो मीटिंग थी उसमें इंडिया हैज़ रिफ्यूज्ड। उन्होंने बोला, यूएसए को बोला और यूरोपियन कंट्री को बोला कि आप डेवलप करके बैठे हैं, आपने मैक्सिमम इन्वायरमेंट को पोल्यूट किया है, तो यू शुड कंट्रीब्यूट मैक्सिमम, नॉट डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। सो अभी वो क्लैश हो गया है और सारा इशू चल रहा है कि अदानी ने बोला था कि ही विल ट्राई टू इंस्टॉल 200 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी अक्रॉस द ग्लोब। अदानी के पीछे लोगों को पढ़ने का ये एक मेन कारण है कि ही विल बी द रिचेस्ट पर्सन, इंडियन विल बी द रिचेस्ट पर्सन अक्रॉस द ग्लोब। सो ये टसल चल रहा है, दे आर ट्राइंग ग्लोबली कि हाउ टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्लोब। तो आई थिंक सोल्यूशन तो ढूंढ रहे हैं, इट्स परम्यूटेशन कम्बिनेशन चल रहा है सब। वही तो बात पकड़ में नहीं आ रही है कि सोल्यूशन पहले किधर है, इधर है कि इधर है, यही तो पकड़ में नहीं आ रहा है। पहले तो हम लोग कहाँ ढूंढ रहे हैं सोल्यूशन। देखो क्या हो रहा है, फिर से एक बात करते हैं। जैसे पेड़ पौधा है ना, तो पेड़ पौधा एक मशीन है, मशीन है, उसको तो भोजन चाहिए, मशीन को करने के लिए कोई एनर्जी चाहिए। उसकी जो पत्तियां हैं वो सोलर पैनल है, सौर ऊर्जा से ही काम चल रहा है। पहले तो सौर ऊर्जा कोई नई चीज़ नहीं है, पूरा धरती पे मानव के आने के पहले ही सौर ऊर्जा का काम शुरू। हर एक पत्ती सोलर पैनल है, आप पहले देखिए उसको, और सोलर एनर्जी पे काम कर रहा है। इतने सारे पेड़ पौधे, मशीन चल रहे हैं पूरे धरती पे, एक भी पोल्यूशन हुआ? अभी मशीन ज़्यादा ह्यूमन का है कि नेचर का मशीन है? तो नेचर में तो ज़्यादा मशीन है और उसमें कोई पोल्यूशन भी नहीं है। बात आई कोडिंग की, एआई की। एक मधुमक्खी है तो मशीन, और उसके अंदर है एक छोटी सी कोडिंग, और जाता है फूल के अंदर, कोई चीज़ लेता है, फिर उधर जाता है, कोई चीज़ बन जाता है। लिया फूल, उधर बना शहद। है एक भी एआई जो फूल को लेकर के शहद बना दे? कुछ नहीं हो रहा है। बातें बड़ी बड़ी हैं और काम बहुत छोटा है। प्रकृति जितना मैकेनिकल भी कर दी है ना, उतना हो नहीं सकता। तो नेचर में हर काम एनर्जी से ही हो रहा है, और ह्यूमन के आने के पहले हो रहा है। फिर ह्यूमन आया, तो ये ह्यूमन आने के पहले एक मशीन बना जिसमें से उसका कॉन्शियसनेस या चेतना मैनिफेस्ट होगा। वो मशीन कौन सी है? शरीर। शरीर एक मशीन है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का यूज है, ब्रेन है। तो ब्रेन ह्यूमन ने बनाया क्या? नहीं। ब्रेन में इलेक्ट्रिसिटी है, सबसे फाइन इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे है? ब्रेन के अंदर। तो प्रकृति में तो ब्रेन के अंदर पहले ही से इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहा हो, इतना फाइन बना सकता है ह्यूमन? फिर उसकी कोडिंग देखिए, एक बरगद का वृक्ष, उसके अंदर एक बीज, बीज के अंदर है कोडिंग। अब वो बीज की कोडिंग कैसी है कि उसको कोई चिड़िया खाएगा। अब वो खाएगा, वो कोडिंग पहले से है कि अगर नहीं खाएगा, बीज गिरेगा तो नहीं उगेगा। ये कोडिंग है कि नहीं? कोडिंग होके ही बैठा है। एक कोड उसके अंदर जनरेट किया गया है कि भाई ये खाएगा और उसको ये चिड़िया खाएगी और विष्ठा करेगी, फिर ये कंडीशन होगा तो ही उगेगा। फिर कितने साल में वो बड़ा होगा, कितने साल में मैच्योर होगा, कब उसका फिर से वापस फल बनेगा, फिर कब वो मरेगा, हर चीज एक बीज के अंदर कोडेड है इतना एडवांस कोडिंग हमारी। होल्ड कमिंग, मैं आपके पास आ रहा, आप कहीं देख रहे हो, मैं कहीं देख रहा हूं।
अब आया उसमें मानव ने सबसे पहले अपना प्रोग्रेस के लिए लगाया जंगल में आग। आज से परेशानी नहीं चल रही है, उसके पहले और आ जाते हैं। तो जब धरती पदार्थ अवस्था ही सजी है, चलो वहां पे नहीं जाते, पदार्थ अवस्था सजा, तो पदार्थ अवस्था में जितने भी तरह के खनिज, मिनरल्स, मेटल्स डेवलप होने थे हुए। तो पदार्थ अवस्था में जब खनिज पूरा डेवलप हो गया इनफ कि जो चीज़ जहाँ होना चाहिए जिस तरीके से होना चाहिए हुआ, होने के बाद उसमें आए पेड़ पौधे आए तो उसमें जंगल बना। तो खनिज का संतुलन पहले आया, उस खनिज के संतुलन के फलस्वरूप में क्या आया? पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों में जंगल आया, जंगल आने से एक संतुलन बना। ये खनिज और वन मिलकर के एक तीसरी चीज आई, उसका नाम है मौसम का संतुलन, ऋतु संतुलन। तो ऋतु संतुलन में पहला आया खनिज संतुलन। तो खनिज का एक निश्चित प्रोपोर्शन है धरती पे, क्या क्या मात्रा में कितना होगा, तो खनिज संतुलन। दूसरा आया वन संतुलन, ठीक है। और इन दोनों के परिणाम स्वरूप, इन दोनों के मिलने से आया ऋतु संतुलन, जिसको कहते हैं क्लाइमेट बैलेंस। अब हमने शुरू किया अपना प्रोग्रेस आदिकाल से। पहले खोजा आग, तो आग बहुत बड़ा डेवलपमेंट, राइट। फिर लगा दिया आग तो लगा दिया, बुझाना आता नहीं है क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी तो डेवलप थी नहीं। तो किसके लिए आग लगाया? क्योंकि हमको करना है उत्पादन। तो उत्पादन कैसे शुरू किया? पहले आग लगाकर। तो आदि मानव से शुरू हुआ वन का शोषण। तो वन है, होल्ड ऑन, आ रहे वहीं पे आएंगे। अभी पहले आप पूछिए नहीं, पहले हम एक हो जाने दीजिए, फिर आइए, फिर प्रश्न करते हैं। तो जंगल को बर्बाद किया पहले लोगों ने, क्योंकि जो ही मनुष्य की थोड़ी सी भी अवेयरनेस आई, उसने जंगल को उजाड़ना शुरू किया। जंगल उजड़े, उसके बाद आया विज्ञान टूट पड़ा खनिज पे। सारी जो इंजीनियरिंग की कोर्स आई, वो क्या किया? मिनरल का पूरा शोषण, और जितना मिनरल का शोषण हुआ उसी में से सारा निकला डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब दोनों में हो गया असंतुलन। धरती में दो चीज़ों का असंतुलन है। जो मेन खनिज है उसमें एक खनिज है जिसको कोयला बोल रहे हैं, दूसरा है खनिज कोयला जो तेल और विकरणीय धातु मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये सारे क्या हैं? खनिज हैं। उसके साथ लोहा है, तांबा है, जस्ता है, जो भी है ना, बहुत सारे और चीज़ें हैं। लेकिन ये जो तीन चीज़ें आई, इसको अभी मनुष्य ने ऊपर धीरे धीरे लाया और इम्बैलेंस किया। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो धरती के किसी एक सतह पे हैं, और जो चीज़ जहाँ होना चाहिए, जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट बहुत नीचे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे रह करके इसके सतह के साथ उसकी पूरकता है, ठीक है। तो जो चीज़ जहाँ है वहाँ हो करके उसको पूरक बना रहा है, ताकि धरती पे चारों अवस्था उदय हो और उसके रहने का प्रोग्राम निकले। अब दोनों ने, अब आ गया ऋतु संतुलन, असंतुलन। तो ऋतु असंतुलन के लिए हम क्या सोच रहे हैं? एनर्जी आनी चाहिए। एनर्जी के लिए क्या करेंगे हम? मिनरल का एक्सट्रैक्शन, और ज़्यादा कहीं भाई कोई चीज़ तो बनाओगे ही, तो आएगा मिनरल्स। तो मिनरल में दो मिनरल, एक बड़ा भारी लिथियम पड़ा है कहीं, चलो उसको निकालेंगे। उससे भी ज़्यादा लोगों का ध्यान है वो है यूरेनियम, जो मोस्ट ग्रीन एनर्जी, और उसको एडवोकेसी कौन कर रहे हैं? दुनिया के टॉप दिग्गज लोग, क्योंकि उनको चाहिए ये। और फीलिंग में क्या करना है? हम धरती का उद्धार करना चाहते हैं, क्योंकि ये भी बनना है भाई। पैसा कमा लिए तो कौन अच्छा बोलेगा? तो पैसा कमाना जरूरी नहीं है, ये बताना जरूरी है कि हम ही धरती के उद्धारक हैं। तो उसके लिए नई टेक्नोलॉजी पे जो काम कर रहे हैं वो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी। और क्या बताना चाहते हैं कि दुनिया का जो सेफेस्ट एनर्जी है, मोस्ट क्लीन एनर्जी, वो है रेडियो एक्टिव एनर्जी, न्यूक्लियर। और उसमें भी फिशन फ्यूजन में मुद्दा चल रहा है
कि कौन सा ज़्यादा बढ़िया है, बट फाइनली रिएक्टर बनाने की तैयारी, और बड़े बड़े रिएक्टर बनेंगे, सोलर पैनल बनेंगे। एक भी कोई ये नहीं कह रहा है कि जो मनुष्य की आवश्यकता है, जो हमारा कंजम्पशन रेट है, उस पे भी कोई काम हो, उस पे अभी एक भी लोगों का आवाज नहीं है। उसमें तो क्या चल रहा है, हमारा इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो दो चीजें साथ में चला रहे हैं, एक है हमारा इकोनॉमिक प्रोग्रेस, क्योंकि कंजम्पशन, इकोनॉमिक प्रोग्रेस माने क्या, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम। अरे भाई कंज्यूम करोगे तो धरती की तो चीजें हैं, और कंज्यूम करने में हो क्या रहा है, वो चीज यहाँ है, यहाँ से वहां आ गई, इतना ही तो हुआ। कंजम्पशन का मतलब जैसे कोई केमिकल धरती में है, वो धरती में से निकल के हवा में आ गई या पानी में चला गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। धरती की चीजें उड़ तो जाएंगी नहीं, धरती की सब चीजें धरती में ही रहेंगी। अब उसी में से हमको धरती में से लेना है, तो धरती में दो तरह की चीजें हैं, एक जो आवर्तनशीलता में है और एक जिसका आवर्तनशीलता सिक्लिकलिटी नहीं बनती है। अब हमारा सारा जो डेवलपमेंट है वो अभी किस पे डिपेंडेंट है, नॉन सिक्लिकल चीज पे। अभी हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं किससे, इससे, पदार्थ से। जो डेवलप चीज है उससे, वो है ये, और इस पे डेवलप करना हमको मालूम है नहीं अभी, समझ रहे। ये तो भाई सिक्लिकल प्रोसेस है, जंगल है, पेड़ बढ़ेगा काटोगे फिर बढ़ जाएगा, बढ़ेगा काटोगे, बढ़ेगा काटोगे, चलता रहेगा। हम प्रोग्रेस इसमें करना चाहते हैं, लेकिन वो जो प्रोग्रेस है, जो एनर्जी की बात चल रही है, एक भी राष्ट्र अपने प्रोडक्शन को क्वेश्चन करने की जगह पे नहीं है कि हम भोग में जी रहे। भोग को किसी को कम नहीं करना है, खाली ऊर्जा के सोर्स को बदलो। तो इतना मैं कह सकता हूं कि अगर आप स्टडी करोगे, अगर भोग का काम मतलब एक्सप्लॉइटेशन का रेट डिक्रीज नहीं होगा, कैसे भी एनर्जी लाओ, अंत में वो क्राइसिस बने ही रहेगी। बस प्रॉब्लम का स्वरूप कुछ और हो जाएगा, यूरेनियम आ जाएगा, कुछ नया प्रॉब्लम, वो आ जाएगा कुछ नया प्रॉब्लम। इससे कोई लंबा चलने वाला है नहीं। और ये लाखों साल से ह्यूमन जो आ रहा है, वो हर बार जो भी करता है, एक समस्या को खड़ा करके उसी को समाधान करके और उसी में अपने को बताता है कि मैं प्रोग्रेस किया। ये जो सोच चल रही है ना, ये नई नहीं है, ये पहले से यही चल रहा है, बस उसके फॉर्म बदल गए, आज इतना ही हुआ है। ये पुराना बीमारी है हमारी, पहले भी ऐसे ही प्रोग्रेस हुआ है। एक चीज बना देते हैं, उससे एक प्रॉब्लम आता है, फिर बोलते हैं ये अगर टैकल कर देंगे बस उसके बाद तो लाइफ सेटल है, उसके बाद तो कुछ करना है। और वो जो ही बनाते हैं तब तक एक नया खड़ा, और जब तक वो सेटल करते हैं फिर एक नया खड़ा, करते करते कहाँ आ गए, अभी यहाँ पे आ गए, धरती रहेगी कि नहीं। क्लाइमेट का प्रॉब्लम नहीं है, इसका प्रॉब्लम कहाँ है, इसको रूट को समझेंगे तो क्लाइमेट का प्रॉब्लम ह्यूमन का प्रॉब्लम है। ह्यूमन साथ में सुखी नहीं है। क्या नहीं है, ह्यूमन साथ में, तो पूरा भरपाई कौन करेगा। अब जैसे मुझे सम्मान चाहिए, अब मेरी जो हाइट है उतना ही रहेगी, हाथ पैर को लंबा चौड़ा कर नहीं सकता है ना, वो तो वैसे ही रहता है। और सम्मान चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं कुछ बड़ा हो जाऊं, तो मुझे क्या मिलेगा, सम्मान। बड़ा किसको करूंगा, अब इसको तो स्ट्रेच कर नहीं सकता, ये तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो उसमें घर को स्ट्रेच कर लिया भाई, गाड़ी को स्ट्रेच कर लिया, समझ रहे। तो असली मामला सम्मान का है, पहचान का है। तो जिसको अभी बड़ा भी काम करना है, आई एम गोइंग टू डू द बिगेस्ट सोलर पैनल, वो सोलर पैनल की बात कम, और उससे भी ज्यादा कहीं और मामला अटक गया है। वो है पहचान, वो है सम्मान। अच्छा बुरा की बात नहीं कर रहे, बात को समझना है कि क्या चीज हमको ड्राइव कर रही है। अब सम्मान क्या चीज होता है, क्यों नहीं मिल रहा है। सम्मान इतना उलझा हुआ है कि हम पहचान सम्मान को ठीक से पकड़ नहीं पाए। सम्मान में हम क्या चाहते, जैसे किसी की अच्छी गाड़ी है मान लो, तो अच्छी गाड़ी देखकर हमको क्या लगता है कि मेरे पास से गाड़ी हो, राइट। तो अगर ऐसा होगा तो हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। किसी के पास बढ़िया घर है तो मेरे पास बढ़िया घर हो, किसी के पास भोजन है बढ़िया तो हमारे पास भोजन हो। मान लो मैं भिखारी आदमी हूँ
और किसी का गाड़ी देखा, मान लो आपके पास गाड़ी है और मैं भिखारी हूँ, है ना, तो भिखारी आदमी ने आपके जैसे अमीर आदमी की गाड़ी देख ली और भिखारी के पास कभी गाड़ी आई नहीं, तो सम्मान मिलेगा? खाली देखने से मिलेगा कि गाड़ी आनी चाहिए? आनी चाहिए। तो आने का मतलब मैं आपके जैसा बन जाऊं। यदि आपके जैसा बन गया तो मेरे अंदर क्या आ गया? सम्मान, राइट। तो कोई चीज है यदि वो मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या हो गया? सम्मान। जैसे आपके पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, आपका गाड़ी देखकर मुझे अच्छा लगा, वो गाड़ी मेरे पास भी आ गई, तभी तो मैं बोलूंगा कि सम्मान हुआ। वो तो अलग चीज है, लेकिन सम्मान हुआ ना आपका कि भाई आपके जैसा मैं बनना चाहता हूं। तो ये आपके जैसा बनने की जो चाहत है, इसका मतलब आपको मैं पहचान रहा हूं ना। तो क्या पहचान रहा हूं? कि इस गाड़ी के साथ ये आदमी सुखी है, तो ऐसा सुख मेरे पास आ जाए। समझ रहे भाई? ये आपके पास घर और इस घर के साथ आप सुखी, तो मेरे पास भी क्या आ जाए? वो सुख। तो वो सुख आ जाएगा। तो मैंने आपको पहचान किया, ये पहचान किया तो हम क्या बोल रहे हैं? सम्मान किया। अभी हाँ हाँ, वो तो अलग विषय। पहले पकड़ते हैं सम्मान क्या चल रहा है। हाँ, कई तरीके हैं, बट अभी गाड़ी से स्थूल दे रहे हैं, बाद में वो भी आ जाएगा। तो ये सम्मान क्या हुआ कि भाई आपके पास गाड़ी है और वो गाड़ी मेरे पास आ जाए। अब कि मैं सदा भिखारी रहूंगा तो थोड़ी ना सम्मान आएगा, मेरे पास आना भी चाहिए। तो उससे मुझे क्या लगेगा कि मुझे सम्मान मिला। तो मतलब आपका मल्टीप्लिकेशन होना, आपके जैसा दूसरा बनना, यही तो सम्मान की बात है। पकड़ रहे सम्मान क्या है? मैं मल्टीप्लाई हो गया तो सम्मान, और मल्टीप्लाई नहीं हुआ तो सम्मान नहीं है। मेरे जैसा कोई दूसरा बन रहा है। अब उसमें मुझे क्या होना है? मुझे आश्वस्त होना है। जैसे मेरे बच्चे होते हैं तो हम अपने बच्चों को, जैसे मैं मान लो पिता हूं, तो मैं अपने बच्चों को अपने से बेहतर बनाना चाहता हूं या अपने जैसा बनाना चाहता हूं? अपने से बेहतर। मम्मी अपनी बिटिया को अपने से बेहतर बनाना चाहती है, अपने जैसा बेहतर। क्यों बेहतर बनाना चाहती है? क्योंकि हम अभी उस जगह पे नहीं है कि मेरे जैसी मेरी बिटिया बन गई तो उसका जीवन सुखमय रहेगा, ये विश्वास मुझ में। तो मैं क्या चाहता हूं कि मेरा जीवन तो उतना सुखमय नहीं है, लेकिन मेरी बेटी का जीवन मुझसे ज्यादा सुखमय बने। ये मेरे अंदर सम्मान है कि अपमान? यही अपमान है। नहीं पकड़ में? खुद के लिए तो अपमान हो गया ना। हाँ, क्योंकि देखो हम दूसरे के साथ तो कुछ भी उल्टा सीधा कर देंगे। ये गाड़ी दिखा के चमका दिया, उनको चमका दिया, उनको चमका, इंप्रेस कर दिया, ठीक है। जब बच्चे की बात आ रही है तो अपने को तो मालूम है अपनी हैसियत, राइट। गाड़ी आने के बाद भी अतृप्ति है और उसको अतृप्ति नहीं होनी है। तो मैं क्या चाहूंगा? अपने जैसा बनाने या अपने से बेहतर? तो बेहतर में हम क्या सोच रहे हैं कि भाई उसका जीवन मुझसे ज्यादा खुशहाल हो, ये मैं चाहता हूं। तो ये जो स्थिति है इसका नाम है अपमान। हम हर दिन अपमान का घुट पी पी के जी रहे। कैसे पता है? हम अपने बच्चों को अपने से बेहतर, ये अपने में प्रमाण है कि आपके अंदर सम्मान नहीं है। अब देखिए मैं कहता हूं मेरे पिताजी के प्रति सम्मान है, मेरी माता जी के प्रति सम्मान है। आपकी बिटिया आपके मम्मी जैसा बन जाए या आपके सासू जैसा बन जाए, चाहिए? उससे ज्यादा भी बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अगर बाय चांस वो मेरे सासू या मेरी मम्मी जैसा बन जाए तो लाइफ इज सक्सेसफुल कि फेल? समझ रहे? तो मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी जैसा बने और मैं ये भी नहीं चाहता कि, तो सम्मान का मतलब है अपमान, अपनाना। क्या सम्मान का मतलब? अपनाना, किसी को अपना लेना सम्मान है।
पकड़ में आ रही बात? सम्मान ही मनुष्य में सुख है। हर मनुष्य सम्मान से जीना चाहता है। सम्मान वो चीज है कि मैं इतना बड़ा क्यों बनना चाहता हूं? क्योंकि मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप मेरे जैसा बन जाओगे तो आपका जीवन भी क्या हो जाएगा? खुशहाल हो जाएगा। लेकिन वो दूसरे को तो दिखा रहा है, अपने घर में क्या कर रहा है? अपने घर में वो चीज नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अपने बच्चे के साथ वो गलती नहीं करना चाहता, अपने बच्चे को वो अतृप्ति नहीं देना चाहता जिसको वो खुद लेकर चल रहा है। तो इसलिए चाहता है कि हमारा बच्चा हमसे बेहतर हो। और समाज में क्या प्रोजेक्ट कर रहा है? समाज में क्या इमेज बना रहा है? मैं ठीक ठाक हूं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मैं ज्ञानी हूं, मैं तृप्त हूं, मैं सुखी हूं, ये हूं, सब दिखा रहा है कहां? समाज में। और घर के अंदर हालत है खस्ता, एकदम कचौड़ी जैसा। तो घर के अंदर कुछ और बाहर कुछ और। ऐसे ह्यूमन के दो फेस हैं। ह्यूमन के क्या हो गया? ये दो फेस, एक उसके अंदर जो उसको पता है और एक जो बाहर संसार को पता है, और दोनों में है काफी दूरी। ये जो इनर कंट्राडिक्शन है हमारे अंदर, ये हमारे अंदर पीड़ा है। हम अंतर विरोध में जी रहे। अब समाधान के लिए क्या चाहिए? पहला बात, हमको ये पता होना चाहिए कि हम अंतर विरोध में जी रहे। नहीं तो समाधान कैसे लाएगा? अगर हम मान के चल रहे हैं कि सब ठीक है, तब तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, क्योंकि सुधरने की कोई गुंजाइश। सुधरने की गुंजाइश कब है? जब अपनी स्थिति पता चले, है ना? तो ये जो मानव है, उसकी असली सच्चाई उसके बच्चे के साथ, जिससे जुड़ा हुआ ना अच्छे से, उसके साथ धोखा नहीं चाहता है। वो उसके साथ गलत नहीं चाहता है, बाकी को कुछ भी भरमा देगा। लेकिन जब छोटा बच्चा है तो उसके साथ वो गलती फिर, तो वहां पे फिर से उसके अंदर एक ऑनेस्टी रहती है कि भाई ये बच्चे के साथ हमको, क्योंकि वहां पे एक इनोसेंट चाइल्ड है और जिससे आप अपना जुड़ाव भी महसूस कर रहे हैं, तो उसको आप चाहते हैं कि एकदम सही चीज मिले। तो इसमें कामना आई कि हमसे बेहतर हो, लेकिन बेहतर क्या है ये नहीं मालूम। तो वापस फिर से वही हमसे बड़ी गाड़ी और हमसे बड़ा मकान, फिर वहीं जा रहा है, क्योंकि उसी का पूरा एजुकेशन, उसी में पूरा उसका चित्रण फैला हुआ है। तो वापस फिर से उसी में उसको लगा देता है। समझ रहे हो? जबकि उसको क्या चाहिए था? ज्ञान पूर्वक जीना, जी करके समाधानित होना और निरंतर सुख को अनुभव करना। और फिर उसके बाद क्या आएगा कि यदि मेरा बच्चा, उसके अंदर भी मेरे जैसा समाधान हो जाएगा, तो उसका भी जीवन क्या हो जाएगा? निरंतर सुखी। तो यदि ऐसी स्थिति हो गई कि मेरा बच्चा मेरे जैसा बनकर निरंतर सुखी हो जाएगा, तो इसका क्या नाम है? सम्मान का भाव। पकड़ में आए? नहीं, फिर से करेंगे उसके बाद। ये तो एक आएगा, अभी तो धीरे धीरे, है ना? थोड़ा उल्टा सीधा हो रहा है ना, कि क्यों हम कुछ मान लिए हैं, कुछ हो रहा है। कर दो महेंद्र भैया जी। हाँ हाँ हाँ, नहीं ठीक है, ठीक है। खुद मतलब मैं, आप जो कह रहे हैं कि खुद के अंदर सम्मानित फील करना, ये एक व्यवस्था हुई। हाँ, और दूसरा है कि मैं किसी का सम्मान कर रहा हूँ। तो अब तक हम सम्मान को देने की वस्तु समझते थे, आप सम्मान को होने की वस्तु बता रहे हो। तो मैं अभी तक मैं सम्मान लेना नहीं चाहता था। मैं तो हमेशा ओके सम्मान लेना भी चाहता था, ठीक है, वो मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आप बोल रहे हो कि सम्मानित होना खुद के अंदर, और मैं तो सम्मान देना भी चाहता हूँ। हाँ, ठीक है, दोनों वर्जन है, दोनों एक ही बात है। देखो, कोई पहले अस्तित्व को समझ करके संसार में जी रहा है, कोई मानव है जिसने अस्तित्व को समझा और संसार में जी रहा है। तो सुख को उसने क्या किया? प्रमाणित किया। उसके बाद सुख क्या है? ऑथेंटिक। अभी हम लोग के पास क्या चीज़ ऑथेंटिक नहीं है? एक ही चीज़ नहीं है, ऑथेंटिक सुख नहीं है। हम सबको क्या, किसमें ऑथेंटिसिटी चाहिए? सुख की ऑथेंटिसिटी चाहिए। अभी सारी क्राइसिस क्या है? सुख की ऑथेंटिसिटी नहीं है, सारा झोल माल वहीं पे है ना? तो सुख की ऑथेंटिसिटी चाहिए।
सुख की ऑथेंटिसिटी कैसे आती है? समझना, जीना। समझने जीने में यदि दूरी है तो मैं सुखी नहीं हूँगा, क्योंकि मैं समझ कुछ और रहा हूँ, जी कुछ और रहा हूँ, तो दोनों के बीच में दूरी है। तो दूरी है तो मुझे कैसा लगेगा? अपने अंदर ही अंतर्विरोध, और जीवन में अंतर्विरोध है तो दुख है। तो मैं समझना भी चाहता हूँ, और समझना और जीने से क्या बन गया? समाधान। समाधान पूर्वक मैं सुखी हो गया, है ना? इतनी बात आ गई। तो ये बात मेरे में आ गई, तो मैं देखूंगा कि यदि ये बच्चा इसको अपना लेगा, मेरा बच्चा इसको अपना लेगा, इस समाधान को, तो उसका भी जीवन क्या हो जाएगा? निरंतर सुखी। और यदि आप समाधान पूर्वक जी रहे हैं तो जो भी आसपास के लोग हैं, आपके बच्चे हैं, वो भी क्या करेंगे? वो भी आपको पहचानेंगे। क्या पहचानेंगे? कि आप निरंतर सुखी हैं। और निरंतर सुखी हैं तो इसका क्या प्रमाण है? आप अपने बच्चे की हर जिज्ञासा को तृप्त कर सकते हैं। ठीक है? तो बच्चा भी पहचान रहा है ना, तो बच्चा पहचान रहा है तो ऐसा बनना चाहता है, और आप देख पा रहे हो तो आप देख रहे हो कि वो मल्टीप्लाई होने से ऐसा बन जाएगा। तो इन दोनों के बीच में एक रिश्ता हो गया सम्मान के साथ। तो सम्मान से, सम्मान के भाव से मैं जी रहा हूं, तो उसको लोग पहचान भी रहे हैं, और पहचान कर, वो पहचान रहे तो मुझे भी विश्वास है कि ऐसा वो बन करके वो भी तृप्त हो जाएगा। ये विश्वास किसमें है? मुझ में है। अगर मुझ में विश्वास नहीं है तो मेरे अंदर ये भी सम्मान की क्राइसिस है, क्योंकि वो ऐसा बन के सुखी हो जाएगा, ये विश्वास मुझ में नहीं। इसीलिए हम अपने बच्चे को हमसे अपने से बेहतर बनाना चाहते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में तो हम किसी का सम्मान ही नहीं करते। अब ऐसे जाओगे तो भी सम्मान तो अभी मानव जी ही नहीं पाया सम्मान पूर्वक, क्योंकि सम्मान पूर्वक जीने के लिए आपको अस्तित्व की समझ और अस्तित्व को संसार में प्रमाण, अभी लग रहा है बहुत बड़ा, लेकिन जैसे जैसे शिविर होगा, एक्चुअली यही मनुष्य के लिए सबसे सहज है, और जो अभी जी रहे हैं बहुत ही असहज है। अभी हम मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहे, आगे आएंगे तो एक चीज मल्टीप्लाई होने की है। तो संसार में जब मैं जी लिया अस्तित्व के अनुसार, तो मनुष्य के लिए यही सम्मान की चीज है। मनुष्य के लिए संसार में क्या सम्मान की चीज है? कि आप अस्तित्व को संसार में प्रमाणित किए। तो अस्तित्व में एक व्यवस्था है, और उस व्यवस्था को आपने संसार में प्रमाणित किया। इससे आपके अंदर स्वीकृति बनी कि मैं एक सही मानव हूं, सही मानव हूं, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। ठीक है? समय हो गया, आप प्रश्न पूछ ली, फिर आके जवाब देंगे, लेकिन पूछिए। हाँ, अभी मैंने कहा था कि अस्तित्व के जो नियम है, उस नियम को समझ के हमारे मानव जीवन में उसको उपयोग में लेते हुए जीवन जीने की कला को से आपको पूर्णता की ओर जाएंगे। जैसा 2-3 क्विक पॉइंट। एक तो पहले आपने बोला कि प्राण अवस्था, और उसके बाद जीव अवस्था, उसके बाद मानव अवस्था। अभी मानव अवस्था में आपने कहा कि हम वो पशु से सीखें सारा चीज़, ठीक है ना? अभी मैंने कहा कि अस्तित्व में कंटिन्यूस इवोल्यूशन हो रहा है। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ऐसा कहीं भी जाके रुकने वाला नहीं है। इट्स अ डायनामिक सिचुएशन। अभी वो जो मानव आए, उस समय तो पशु की तरह ही जी रहे थे। उनको बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए, जैसा वो जीव अवस्था में जो जानवर कर रहे थे, राइट, सर्वाइवल के लिए वो किसी पशु को, जीव जंतु को मार के खाते थे, उससे ही जीवन चलता था। वो तो धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। उनको जब कल्पना शक्ति थी तो धीरे धीरे वो देखने लगे कि अरे ये मांस हम ऐसा खा रहे हैं, तो 2 पत्थर टकराने से या 2 पेड़ टकराने से जो कुछ आग निकली, तो उसको वो सोचने लगे, और धीरे से उसने इस मांस को आग में लगा के फिर खाना चालू किया। तो ये तो इवोल्यूशन का एक प्रोसेस है।
वो प्राकृतिक प्रोसेस है, इसमें मानव का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि उनको सरवाइव करना था तो ये करना था। बाद में धीरे धीरे कल्पना शक्ति उसमें थी, तो धीरे धीरे सोचने लगा कि ये जो हम मांस खा रहे हैं उससे अच्छा ये जो फल फूल जो प्रकृति में है उसको खा के भी हम जीवन निर्वाह कर सकते हैं। तो वो इस तरह से जीवन जीने लगे। तो ये प्राकृतिक क्रिया के रूप में ही सारा चीज इवोल्यूशन चला। ये एक पॉइंट हुआ जिसमें वेज नॉन वेज और नहीं, बस आप इस तरह जो ये आप कह रहे हो ना कि चला, आप बहुत एश्योरेंस के साथ कह रहे हो हाँ, कि यही अस्तित्व है, थोड़ा सा उसको भी नहीं अस्तित्व बोलना। मतलब प्राकृतिक नियम जो अरे है, प्राकृतिक नियम आप ये कह रहे हो ना कि कंटिन्यूअस इवोल्यूशन है कि नहीं है, ये एक अलग मुद्दा है। हम जब व्यक्त कर रहे हैं तो हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। हाँ स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि अस्तित्व में कंटिन्यूअस इवोल्यूशन है। अभी हम अस्तित्व का अध्ययन करते हैं। अभी हम एक दूसरा प्रस्ताव देकर यहाँ रोक देते हैं कि अस्तित्व स्थिर है। नहीं अभी मैं ये आ रहा हूँ क्योंकि अपने ब्रेक लेना है इसलिए। हाँ तो एक दूसरा प्रस्ताव है कि अस्तित्व स्थिर है। ये एजम्पशन है। तो दो एसम्पशन है, एक है कंटिन्यूअस इवोल्यूशन है, राइट और एक है स्थिर है अस्तित्व। राइट करेक्ट। अस्तित्व स्थिर है, दूसरा है कंटिन्यूअस इवोल्यूशन है। तो अभी दो चीजें आ गई ना, तो इसको समझना पड़ेगा, इसको समझेंगे। हाँ, अभी कि दूसरी क्या है। बात जो आपने कहा कि ये जैसे बल्कि आप बोल देता हूँ, ये जो कह रहा है विज्ञान कह रहा है, आपका विचार नहीं है, ये है विज्ञान। जो थोड़ी बहुत समझ में आ रहा है वो अभी तो तक, विज्ञान की मान्यता ही आप बोल रहे हैं। नहीं आप विज्ञान की मानता नहीं, जो जीवन देख रहा हूँ जीवन आप वो नहीं जो देख रहे हैं, आप थोड़ा- संसार देख रहे हैं, यही पकड़ में नहीं आ रहा है ना। नहीं वो आप एक्चुअली नहीं, आपको इस तरह का लग रहा है, बट मैं वो बाद में हम लोग चर्चा करेंगे उसका। करेंगे, मैं अभी आऊंगा। आपने आप जहां दूसरी से आ रहे हो मैं वहीं पे आ जाऊंगा। नहीं, दूसरी बात आपने कहा कि हम मानव जो हैं, हम जो हैं अपने बच्चे को हमसे अच्छा बनाना चाहते हैं। ये आपका एजम्पशन है। अगर मैं डॉक्टर हूँ और मैं अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाना चाहता हूँ, दैट इज़ योर एजम्पशन एंड स्टेटमेंट। मैं उस पे भी आ जाएंगे। उस डॉक्टर से बेटर बनाने के लिए उसको इंजीनियर बनाऊंगा या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाऊंगा या साइंटिस्ट बनाऊंगा, इस तरह। तो आप बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ उसमें मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, हाँ राइट। हाँ। और इसके कारण मैं अपने बच्चे को वो नहीं बना रहा हूँ। हाँ, उससे बेहतर। नहीं, वही बोल रहे हैं, उसको उस लाइन में नहीं डाल रहा हूँ, उसको दूसरे लाइन में डाल रहा हूँ विथ एजम्पशन कि दिस इज नॉट गुड प्रोफेशन, वेदर डॉक्टर और साइंस और चार्टर्ड और वट एवर इज देयर, दैट इज योर एजम्पशन। बट यहाँ बहुत सारे माता पिता हैं, अगर वो खुद इंजीनियर हैं तो बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं तो वो बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। ठीक है, सो ठीक है, वो भी आकर बात करते हैं। हाँ। वो तो उतना तो हमको भी मालूम है। हाँ इतने सारे डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर, इतने सारे लॉयर के बच्चे लॉयर, ये तो सामान्य जगत में दिखता है, तो इतना अपने को मालूम है। लेकिन उसमें भी वो थोड़ा अपने से बेहतर डॉक्टर, अपने से बेहतर लॉयर और आएंगे तो कैरेक्टर की बात आ जाएगी। बराबर। बट इसमें क्या है, उसमें हम अपने को सम्मान नहीं दे रहे हैं या अपने को अपमानित समझ रहे हैं, इसके कारण हम नेक्स्ट जनरेशन को उसके कारण नहीं कह रहा हूँ, आप समझिए बात। मैं कह रहा हूँ सम्मान की क्या स्थिति है। हाँ अगर मेरे जैसा पूरा संसार बना हाँ समाधानित, हाँ। तो संसार में समाधान आ जाएगा। अरे ऐसा है कि अगर इस रूम में अगर हम 50 लोग हैं, अभी सब यूनिफॉर्म हो जाएं तो बोर हो जाएगा, पूरा संसार जीने लायक नहीं ये होगा। भी रखेंगे, यूनिक होना चाहिए, संसार में यूनिकनेस आना चाहिए, आ जाएंगे, अलग अलग फ्लेवर होना चाहिए, तो देन ओनली यू विल एंजॉय लाइफ। आ रहे उस पे आ रहे हैं, एक के बाद बढ़िया है, सब चीज खुल रहा है, आ रहे हैं, और इस पे भी बात करेंगे, है ना। ये वाली चीज छोड़ेंगे नहीं, हर एक मुद्दा उसमें कवर करेंगे। अस्तित्व क्या है, क्योंकि सभी मामला जाके टिका हुआ है अस्तित्व को समझने को लेकर। अस्तित्व क्या है, क्यों है, कैसा है, उसी पे सारे असम्पशन बेस्ड हैं। यदि अस्तित्व जैसा है वैसा दिख गया तब तो इधर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अस्तित्व में भिन्नता है तो इधर प्रॉब्लम है।
तो उसको आके रिजॉल्व करते हैं अपन लोग। बस यही तो बात है। चलिए थोड़ा ज्यादा हो गया।